audible? And okay, thank you. Let me just confirm regarding the recording as well, that if that started or not. Uh, okay, so as you all know, the agenda for today's workshop is that we are to discuss regarding software engineering as a career. Okay, and the things that we will be covering are the mindset that is required, the outcomes of becoming a software engineer. Okay, so you can see it if it's beneficial or if it aligns with your goals, career goals or not. Along with that, we will have a bit of market analysis. Okay, that what technologies, what languages are beneficial for you, what pathways you should take, what roadmap you take based on your preferences as well as the market analysis. उसके बाद हमारे पास एक और फेज है, ठीक है, ऑफ दिस वर्कशॉप. ठीक है, ये इनिशियल फेज की मैंने बात की, उसके बाद हमारे पास फेज आता है जो कि जिसमें हम थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव सेशन कंक्लूड करेंगे, जिसमें वी विल हैव आई विल डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू डेमोस, राइट. और उसके बाद वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट other things that are required, and we will also see those क्योंकि I also work in the industry as and I have a lot of production ready applications. Okay, so I will make sure to give you guys a bit of a glimpse to all those. ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अंदाजा हो कि चलो ये तो हम लोग डेमो है, ठीक है. ऑब्वियसली इंडस्ट्री में कभी भी आपसे किसी ने टू डू की एप्लीकेशन नहीं बनवानी, यहाँ के कैलकुलेटर की एप्लीकेशन किसी ने नहीं बनवानी, ठीक है. दैट इज अंडरस्टैंडेबल. सो ये चीज एक मेजर गैप होता है हमारे ओवरऑल what is being taught in the current roadmap, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में मे बी CS पिक किया, SC पिक किया, इवन साइबर सिक्योरिटी पिक किया है. So this is a major gap for you कि you are unable to look into the how the production applications are made, worked, structured, maintained. Okay, ये चीजें नहीं, इस चीज का exposure basically that is missing from what the conventional traditional education system teaches us, right? So हम उसको भी देखेंगे, और yes, we will also look at a lot of other things, a lot of other architectures, infrastructures, क्योंकि software engineering is just not about writing code. ठीक है, अगर सिर्फ कोड राइटिंग की बात होती तो हम उसको डेवलपर कहते हैं, ठीक है. So मतलब ये सारी चीजें हैं, we will discuss in detail. So I will start sharing my screen and we will go over these points one by one. ठीक है, तो first phase would be a bit of how can I say this, a bit theoretical, I can call it, right? So can you see, can everyone see my screen? कोई रेज हैंड कर दे या चैट में बता दे कि अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है, so we can proceed. Perfect, thank you. Okay, so yes, the theme of today's session is from code to career, because being a good coder, being a good programmer doesn't land you into the industry, doesn't land you a job, doesn't mean
दैट मे बी आपको इंटर्नशिप ऑफर हो गई, मे बी आपने अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स की, ऐसे आप एक जूनियर whatever we call it बैक एंड डेवलपर भी बन गया है, मे बी फ्रंट एंड डेवलपर बन गया है, whatever जो भी आपने पाथवे चूज किया है based on your preferences. So still how to progress, how to uh, grow in the industry, these things are really essential. ठीक है, because the IT industry थोड़ी different है बाकी इंडस्ट्रीज से. अगर आप कंपेयर करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट है. IT इंडस्ट्री में जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि यू नेवर स्टॉप लर्निंग, ये काफी ज्यादा सीरियसली और काफी ज्यादा डू और डाई वाली सिचुएशन है. क्योंकि अगर आप जो जिस बंदे ने इंडस्ट्री में काम किया है 4 साल 5 साल पहले एंड उसके बाद उसने गैप लिया, ही इज ऑब्सोलीट नाउ. उसे इंडस्ट्री की जरूरत ही नहीं है, भले उसका उससे पहले 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है. इंडस्ट्री को उसकी जरूरत नहीं है. इंडस्ट्री को सिर्फ उस बंदे की जरूरत है जो कि इंडस्ट्री के साथ चलता है. ठीक है, it's not like कि आपने आज फॉर एग्जांपल this semester you have graduated. ठीक है, मे बी अंडर ग्रेजुएशन में मे बी आपने मास्टर्स की है, whatever level of education you are doing, it doesn't mean कि that is a stopping point for you in terms of learning. अगर ऐसा होगा तो फिर the IT industry is not forgiving in this direction. ठीक है. Yes, about the journey, I will give short brief about my journey. Okay, I have around 5 years of experience until now, and it's still counting, you can say. And I started, as everyone, I started with an internship in 2020, mid of 2020, and then converted into a job. Did that for 6 months, then left that, joined another company, worked there, was promoted multiple times. At the end, leaving the company as a CTO of Ripple Intra Technologies in Karachi. Okay. After that, I ran my own company, and currently I am also running my own company with the foreign investment from Switzerland and Germany. So, and we also are working with we are not working with local clients. We are only working with clients from Swiss and German region. And if you ask about a bit of technicalities, as my tech stack would be, I would say currently I'm working as working in MERN stack along with Python Django. That has been my cup of tea since the start. यही दो टेक्नोलॉजीज हैं जिसको मैंने मेनली फोकस किया है शुरू से, और अभी तक भी मैं इन्हीं पे हूँ. फर्स्ट इज MERN एंड द अदर इज Python का Django का स्टैक आता है. ठीक है, Django फ्रेमवर्क होता है. एंड उसके अलावा फर्दर अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट नॉट अबाउट व्हाट यू डू. इसके अलावा भी आपकी जो साइड स्किल्स हैं, व्हिच इंक्लूड्स DevOps, which includes your management, which includes आप कैसे अपनी पाइपलाइन सेटअप करते हो, कैसे अपना वर्कफ्लो सेटअप करते हो, तो उसको भी हम स्लोली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ठीक है. एंड यस, एंड अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक वेरी मतलब एक ये चीज समझने वाली है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अ कोडर, या हम जिसको एक डेवलपर बोलते हैं, उसमें और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फर्क है. ये एक मेजर ये दिस डिफरेंस यू मस्ट नो इट. ठीक है, और क्योंकि ये भी डिफाइन करता है आपकी करियर ग्रोथ को. देखें, चैट जीपीटी है, ठीक है, इट इज अ डेवलपर, इट्स अ कोडर, वी कैन कॉल इट. ठीक है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को भी कल को मैं कोई डिजाइन दूं ना, ठीक है, फिग्मा फाइल हमारी होती है जिसमें हम डिजाइन लाइक वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस आई हैव सम पेज, मे बी दिस पेज. ओके, कि इसकी जो डिजाइन है ये पहले डिजाइन किसी डिजाइनर ने की है, उसके बाद द डेवलपर हैज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैज वर्कड ऑन इट टू मेक इट ऑल डायनामिक एंड ऑल फंक्शनल. लेकिन अगर मैं यही डिजाइन उठा के मैं चैट जीपीटी को भी दे दूं, वो भी क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो आप में लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ पर्सन, आप में और एक एआई टूल में, ठीक है, व्हिच इज आई वुड से प्रोग्रेसिंग मोर, प्रोग्रेसिंग फास्टर देन इवन अस. ठीक है, जो कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको बताओ कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोर्सेज कितना अर्से तक अपडेट नहीं हुआ, आपके स्कूलिंग सिस्टम 40 साल पुरानी किताबें चला रहा है. तो यू सी द एआई इज स्टिल अगर हम सिर्फ हेड टू हेड कंपैरिजन में आए तो एआई विल बीट यू, जहाँ बीट कर चुकी है या बीट कर लेगी. ठीक है, तो डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फर्क है. ऐसे चैट जीपीटी भी वी कैन कॉल इट अ डेवलपर, सॉरी, सो चैट जीपीटी वी कैन कॉल इट अ डेवलपर एज वेल. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम डिफरेंशिएट, क्या मेन डिफरेंसिंग पॉइंट क्या होता है कि
यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम समझते हो और उसको फिर सॉल्व करते हो. डेवलपर क्या होता है, डेवलपर को आप बोलोगे कि यार ये डिजाइन है, ये डिजाइन लो और इसको आप डेवलप कर दो, ही विल डू दैट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेगा कि वेदर दैट डिजाइन, वेदर यू नो द प्रॉब्लम, ही विल फर्स्ट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. ठीक है, एंड उसके बाद वो ये भी मे बी ही रीट्रेट्स ऑन योर स्कोप इवन कि भाई आपने ये रिक्वायरमेंट दी है लेकिन दिस रिक्वायरमेंट डजंट फिट योर, दिस वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, ऐसी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं. मैं फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं, लेट्स से Bexio इज वन सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर लाइक कंपनीज के इंटरनल यूज के लिए होता है, फॉर मैनेजमेंट एंड ऑल. ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैंने कहा कि आई हैव दिस कंपनी. ठीक है, आई हैव अ कंपनी विच वर्क्स, मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी फॉर एग्जांपल. ठीक है, और मैं कहता हूं कि मतलब हम लोग सो फार अभी तक पेन एंड पेपर पे मैनेजमेंट करते रहे अपनी एम्प्लॉयज की, अपने अकाउंटिंग की, अपने सारे मटेरियल्स की, सब चीज़ों की हम पेन एंड पेपर पे करते रहे मैनेजमेंट, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. आप स्केल नहीं कर सकते. अगर आपके 1000 एम्प्लॉयज हैं, आप उनको ब्लैक एंड व्हाइट में आप यू कैन नॉट मैनेज इट. ठीक है, सो मैं क्लाइंट हूँ, मैं गया, मैंने कहा कि चलो आई थिंक Bexio विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, सो आई नीड अ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू Bexio, एंड आई एम अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और मेरे इतने एम्प्लॉयज हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द होल स्टोरी बेसिकली. और द कंपनी और द सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लुक्स एट इट एंड वो कहेगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर तो आपके लिए बना ही नहीं है. ठीक है, he will analyze that, he will analyze your problem, and then he will propose a solution. So you see there's a difference between a developer and a software engineer. और आपको इंडस्ट्री में भी यही नजर आएगा कि आपको नो डाउट डेजिग्नेशन तो दी जाएगी, मे बी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे बी सीनियर इवन, लेट्स कॉल इट दैट, मे बी सीनियर इवन, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू विल बी कॉल्ड दैट. ठीक है, आपको ये डेजिग्नेशन दे दी गई है. ठीक है, और मे बी पे स्केल भी आपको दे दिया गया है, एंड ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल. बट उसके बाद की क्या बात है, लाइक soon you have to become a team lead, you have to be a manager, क्योंकि obviously these are the next steps. और उसके लिए until and unless आप ये सारी चीजें नहीं समझते, एंड आप जो क्लाइंट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझते, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझते, एंड उसके हिसाब से एक अच्छा और सुटेबल सोल्यूशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ऑल द कंस्ट्रेंट अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, देन you cannot progress in that direction. So you just give me a second. I will be back. Sorry about that. I had a call. अच्छा, तो any questions regarding so far what we have covered? किसी को मे बी डिफरेंस समझ में ना आया हो, कुछ भी हो तो द वर्कशॉप यू गाइस कैन एनी टाइम आप स्टॉप कर लो. ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो. ठीक है, जितनी इंटरेक्टिव होगी वर्कशॉप उसमें द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चंस का तो ज्यादा ही फायदा होता है और बाकी का भी फायदा हो जाता है. सो दैट इज हाउ दैट इज द प्लान एटलीस्ट. ठीक है, अच्छा, हमने जैसे डिस्कस किया एसेंशियल स्किल्स टू एक्वायर में, नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग के अलावा इसमें बात की जाती है कि प्रोग्रामिंग तो हर कोई समझता है कि भाई ठीक है, आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एटलीस्ट हैव टू नो हाउ टू डेवलप थिंग्स, राइट. बट बाकी जैसे हमने बात की है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कोलैबोरेशन की, यस मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, एंड देयर इज अ ह्यूज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. उसमें फिर एक और प्रोग्रामिंग के अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं. इसमें हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम आ जाता है, विच आप सबको पता है, सबने गिटहब तो यूज किया हुआ है, लेकिन गिटहब का जो द गेट कमांड, ओके ठीक है, जो SCM हम कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग का, वो जो आपके सिस्टम पे आप इंस्टॉल करते हो, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल. ठीक है, हर किसने उसको यूज किया, मे बी टू क्लोन अ रिपोजिटरी, मे बी टू क्लोन, मे बी अपना किसी ने सेमेस्टर प्रोजेक्ट क्लोन करने के लिए किसी और से गिटहब से जिसने उठाया होगा कोई रिपोजिटरी, तो उसने उसको क्लोन करने के लिए इस्तेमाल किया होगा जरूर. ठीक है, लेकिन नॉट मोर देन दैट, मे बी अ फ्यू कमिट्स, बट गिट एक अलग पूरी दुनिया है. ठीक है, which
जितनी अच्छी आएगी, it really helps, climbing the ladder. ठीक है. अच्छा, yes, regarding the path. अच्छा, software engineering के अंदर we have a lot of branches. ठीक है. आपने you would have heard of a front end developer, ठीक है, or front end software engineer. You would heard of a back end software engineer. You would have heard of a full stack web developer or a full stack web software engineer, as well as mobile, and the list goes on. We have security engineering is also comes under software engineering, and then we have a lot of other subfields as well. So you must choose your path कि आपने front end development करनी है, back end development करनी है, या क्या करना है. ठीक है. एंड इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मे बी सम ऑफ यू मे नो, मे बी सम ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट. ठीक है. तो लेट मी पिक एनी स्टैटिक साइट. लेट मी थिंक ऑफ वन. फ्यूजन डेव. फ्यूजन डेव, चलो अच्छा मार्केटिंग कर लेते हैं इनकी भाई की. फ्यूजन डेव or even cloud solutions will work. Yes, so Fusion Dev. So this is one website. Okay. Now, as you can see, this is a website. ठीक है, इसमें चलो well designed सारी information है. ठीक है. You can go through all. ठीक है. And अच्छा, same background की तीनों pictures हैं वैसे. अच्छा, sorry. ठीक है. तो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक वेबसाइट है फ्यूजन डेव. ठीक है, ये कंपनी की वेबसाइट है जिसने अपने बारे में बताया हुआ है. कंपनी में अपनी सर्विसेज जो हैं उन्होंने बताई हुई है कि वी प्रोवाइड ऐप डेवलपमेंट, वी प्रोवाइड वेब डेवलपमेंट, वी आल्सो प्रोवाइड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. ओके. एंड दे आल्सो हैव देयर पैकेजेस रिटन डाउन, एन इन्फॉर्मेशन वेबसाइट. ठीक है, इस साइट को आप क्या कहोगे? एज एन इन्फॉर्मेशन वेबसाइट. ठीक है, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, आपको कंपनी के बारे में, लाइक इट्स ऑल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर तरीके से. ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स देन दैट. ठीक है, इसी को आप कंपेयर करो लेट्स से गूगल की वेबसाइट से, google.com. ओके, इट्स ऑलरेडी ओपन बाय द वे. सो अब इसमें देखो कि मैं आई कैन ऐड अनदर अकाउंट, आई कैन लॉग आउट माय एग्जिस्टिंग अकाउंट. सो दिस इज यू कैन इंटरेक्ट विद द वेबसाइट. द वेबसाइट इज इंटरेक्टिव. इसकी एक और निशानी है, एक और सिंपल सा एक रूल है कि आप देखो कि इस वेबसाइट को मैं खोलूं, आप खोले, कोई और खोले, देयर विल बी नो डिफरेंस. ठीक है, इस वेबसाइट कोई डिफरेंस नहीं होगा. अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊं तो मेरा अकाउंट अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो इट्स डिफरेंट. ठीक है, फॉर यू इट विल बी डिफरेंट. मैं ईमेल खोलता हूं तो जीमेल पे अकाउंट्स जो डिटेल्स हैं, द मेल्स विल बी डिफरेंट फॉर यू, द मेल्स आर डिफरेंट फॉर मी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ डायनामिक वेबसाइट. ठीक है, ये एक डायनामिक वेबसाइट है rather than what we call this a static website. ठीक है, अब स्टैटिक वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए इस सारे पोर्शन, this part, the complete design part, जो डिजाइन हुई गई वेबसाइट. ठीक है, this is the work, this is the expertise, this is the job role of a front end software engineer. ठीक है, ये सारा उसका काम है. ठीक है, उसको मे भी डिजाइन मिलती है, मे भी नहीं डिजाइन मिलती, बट दिस ऑल what has been built on Fusion Dev, it's done by a front end software engineer. ठीक है, लेकिन अगर आप इसी केस में आप गूगल पे आ जाओ, लेट्स कम टू इट. ठीक है, ये गूगल की एक वेबसाइट है. इसमें आई सर्च हेलो, ठीक है, जस्ट सर्च सिंपल दिस, चलो समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, अब इसमें देखो कि आप दिस इज द डिजाइन. ठीक है, ये भी किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने डिजाइन की है, बट द प्रोसेस के इधर मैं हेलो लिखता हूँ एंड आई गेट सम डाटा रिटर्न. सो दिस इज डायनामिक. इफ यू ओपन द साइट एंड यू सर्च समथिंग एल्स, यू विल गेट सम डिफरेंट रिजल्ट, अनलाइक अ स्टैटिक वेबसाइट. ठीक है, so this dynamic procedure needs a backend development, the backend developer or backend software engineer as well. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. इसमें backend में भी they are processing some data, they are analyzing some data, they have the data storage, they have the caches, they have the all complete DevOps procedures, they have the complete queue implemented for all the searches that are being done. Along with that, they have the queue implemented कि जो भी सारी वेबसाइट्स, तो गूगल कैसे काम करता है कि गूगल जो भी कंप्लीटली वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, दे क्रॉल इट. क्रॉलिंग का क्या मतलब होता है कि उनका एक बॉट है. ठीक है, एक डेटा बॉट है which is going through each and every website and it is I won't say understanding it, but it is scraping it, we call it. ठीक है, बट अगर scrapping word का if it's not clear, but आप समझो कि it's understand, it grabs the details from it. ठीक है, तो that is how it उसने मुझे रिजल्ट दिया है, उसने मुझे ये वाला रिजल्ट दिया है. ठीक है, you see, because इसके नाम में हेलो था, so
It came up when I searched hello. So this is the whole process. ठीक है, और ये बैकएंड पे हो रहा है. ठीक है. Yes. अच्छा, coming back to your path, तो इसमें ये चीज पता चलती है कि इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे you won't say कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए. आप कहोगे मुझे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए. आप कहोगे मुझे बैक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए, जहाँ मोबाइल की या so on and so forth, as we have a huge list of fields. Yes, portfolio की क्यों जरूरत है? As ये the reason for this here is why you need a portfolio, because जब for you, let's pick a person, ठीक है, maybe मैं ही हूँ हसीब, ठीक है, I am Hasiब and I am a student of 5th semester cyber security या 5th semester CS का स्टूडेंट हूँ मैं, let's assume, ठीक है. तो अब मैं जब ग्रेजुएट करूंगा या मैं अभी ही आई एम ऑन द मार्केट, आई एम लुकिंग कि मुझे कोई जॉब मिल जाए इन सॉफ्टवेयर, सो आई कैन पॉलिश माय स्किल्स, आई कैन स्टार्ट माय करियर एंड यू नो मूव अहेड. जब मैं इंटरव्यू जाने बैठता हूँ तो व्हाट प्रूफ डू आई हैव कि भाई मुझे काम आता है? अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मेरे पास क्या प्रूफ है? ठीक है, अगली कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बैठाए, आपको बोले कि भाई यू नो आप एक टास्क करो एंड देन यू नो गिव इट बैक टू अस, वी विल इवैल्यूएट. लेकिन मानो इवन व्हेन वी पोस्ट सम जॉब, हमारे पास 200-300 सीरीज आई भी होती हैं. ठीक है, तो 200-300 को फिर देन वी हैव टू शॉर्टलिस्ट एंड देन उनमें से लिमिटेड लोगों को इंटरव्यू लिया जाता है. तो यू नो इट्स ऑलरेडी अ लॉन्ग प्रोसेस, और यू नो कंपनीज कोशिश कर रही होती है किसी न किसी इस प्रोसेस को खत्म या कितना लाइक नेग्लिजिबल बनाया जाए कंपेयर टू व्हाट इट इज एट द मोमेंट. तो वो उनके वो कभी भी इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगी आपके साथ. सो यू मस्ट बी प्रेजेंटेबल इन अ वे कि उनका बगैर टाइम ज्यादा दिए हुए यू प्रूफ योरसेल्फ. ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस, वरना आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके लिए बोलता है. ठीक है, तो पोर्टफोलियो, अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, पोर्टफोलियो इज एज एसेंशियल फॉर यू एज योर स्किल्स इटसेल्फ. ठीक है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि काम करने से ज्यादा काम जताना ज्यादा जरूरी है. काम करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, दे डू नॉट गेट अ रिटर्न, और काफी लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो काम नहीं करते. ठीक है, बट उनको जताना आता है, सो दो दे गेट अ लॉट मोर ऑफ अ रिटर्न. ठीक है, ठीक है. तो आई एम नॉट सेइंग कि काम ना करो और जताना सीख जाओ, नॉट सेइंग दैट. काम करना भी आना चाहिए और काम को जताना भी आना चाहिए. और हमारे यहाँ इट्स we live in a society where even if the debtor, मतलब जिसने आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है, whether it's money, whether it's something else, whether it's grades, आप अपनी केस ले लो, टीचर का केस ले लो. ठीक है, अगर आपने पेपर में कोई चीज गलत लिखी है, पर ये टीचर को पता है, यू नो इट, दिस स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अच्छा आता है, मे बी वो लैब में आपने परफॉर्म किया, मे बी कहीं भी परफॉर्म किया, बट ही वॉन्ट गिव यू द मार्क्स. ये उल्टा वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी गलती निकालूं. ठीक है, ठीक है, वो कोशिश करेगा कि मैं गलती निकालूं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपको स्किल तो आती थी, आपको पता था ये कैसे होता है, बट यू कुड नॉट राइट इट, यू कुड नॉट प्रेजेंट योरसेल्फ. ठीक है, तो ये सारा एक यू नो ये खैर पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान में चलो ज्यादा वी कैन कॉल इट. बट आई गेस ये है कि रूल ऑफ थंब इज के काम करना भी जरूरी है, काम सीखना भी जरूरी है, और उसको जताना भी आना चाहिए. नेटवर्किंग, आईटी इंडस्ट्री इन जनरल, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी लिमिटेड नहीं है, ये ना ही किसी साइबर के शोबे में लिमिटेड है, ना ही किसी और के यू नो किसी और इंडस्ट्री पे लिमिटेड है. नेटवर्किंग हर इंडस्ट्री में जरूरी है. ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा उससे आपको उतने बेनिफिट्स मिलेंगे, वेदर इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, बेटर जॉब मोर इजीली, और वेदर आप अपनी ज्यादा स्किल्स को, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो खाली करंट जॉब में रहते हुए ही. एंड इफ यू आर बिजनेस ओनर, ठीक है, और फ्रीलांसर लेट्स सपोज, देन आपको क्लाइंट्स ढूंढने में, बिजनेस वेंचर्स में, अपॉर्चुनिटीज में भी अच्छे वेंडर्स ढूंढने में नेटवर्क इज द की. और if you go on the internet and listen to a lot of entrepreneurs, they say network होना ये आपकी वैल्यू है. ठीक है, the broader, the richer the network you have, the more value you bring to any organization or even to yourself in your career. So network की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, और how to build a network, इसके ऊपर I would say एक अलग से डिस्कशन की जरूरत है. if anyone is interested, you know we can you know arrange a discussion on that. Basic तो हर किसको पता है कि आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए आप LinkedIn का अकाउंट बना लो.
आप यू कैन अप्रोच, यू कैन कोई फ्री इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि मीटअप्स होते हैं, उसमें आप जाओ। ये तो चलो एक ना लिखी लिखाई बात है, ठीक है, ये तो करनी ही है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये इनका फायदा नहीं है, ये तो करनी ही है। उसके आगे के भी देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स which you must do which to grow your network and to improve your value as well, because network does affect your value. Preparing for interviews, इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा because this is a topic which is uh, quite niche है। मतलब जो आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फ्रंट एंड के लिए maybe the discussion would be different. For backend the discussion would be different, but एक रूल ऑफ थंब तो है कि अगेन वही वाली बात आती है, प्रेजेंट करना आपको जरूरी है, ठीक है। और प्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं उसमें, बेसिक चीजें तो चलो आई वुड डिडंट प्लान टू रिपीट, बट यही है कि ऑब्वियसली वेल ड्रेस्ड, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सीवीज, पोर्टफोलियो जैसे हमने डिस्कस किया, इट कम्स अंडर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। आपके पास सर्टिफिकेशंस अगर हैं तो इट्स अ ह्यूज प्लस फॉर यू। एंड आई थिंक देयर इज सम chat message. For LinkedIn profile build-up, चलो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन चलो कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरा भी कोई खास लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा नहीं बना हुआ। आई हैवंट पुट मच टाइम इनटू इट और एनी टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी तक मौका कभी मिला नहीं कि बंदा सुकून से बैठ के इसको अपग्रेड करे। बट a few key things which after some research which I got to know, ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रोफाइल तो कंप्लीट करोगे ही अपना, राइट। उसके अलावा दिस टाइटल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इसको आप ऐसा ना करो कि आप लिख दो फ्रंट एंड डेवलपर एट दिस कंपनी, दिस इज नॉट अ कैची टाइटल, ठीक है। यू हैव टू मिक्स इट अप अ बिट, ठीक है। कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि आप हमेशा यूजर नेम जो लिंक्स हैं, यू कैन मेक इट कंसिस्टेंट ऑन ऑल योर प्लेटफॉर्म्स। आप बी एक्टिव ऑन इट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, दिस इज रियली बूस्ट यू अप, ठीक है। उसके अलावा वेरिफिकेशन की तो बात आ गया, सबको पता है कि कोई आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसकी ईमेल से आप खुद को वेरीफाई करवा लो। if the organization is registered on LinkedIn business, नहीं तो फिर मे बी आप स्टूडेंट हो, कौन सा के स्टूडेंट्स हो, तो यू कैन वेरीफाई योर यूनिवर्सिटी ईमेल एज वेल, ठीक है। दैट इज आल्सो वन ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा आप you obviously have to post your experiences completely, your education completely, उसको आपने सही से प्रेजेंट करना है। मैंने कुछ खास प्रेजेंट नहीं किया हुआ। My LinkedIn profile is definitely not, I would say, an example here, ठीक है। But there are a lot of other people जिनका I saw कि their LinkedIn profile was, I would say, really good. For example, मेरे ज़हन में एक नाम आ रहा है। So, आपको एक्टिव रहना, ये तो सबको पता है कि यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू, मतलब आपने खुद पोस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने दूसरों की पोस्ट लाइक करनी है या करना है, यू हैव टू शेयर योर थॉट्स। और एक चीज है कि ये एक लिंक्डइन पे नो डाउट इट्स द स्टैंडर्ड, इट्स द ट्रेंड कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मतलब इसको आप अगर लिंक्डइन पे कोई पोस्ट करता है ना, कोई अचीवमेंट, तो ही राइट्स अ लॉन्ग पैराग्राफ अबाउट इट। जबकि हकीकत जो बात होती है वो वही बात है, प्रेजेंटेशन, बट ओवर प्रेजेंटेशन है लिंक्डइन पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के चक्कर में किसी अपने एक छोटी सी अचीवमेंट को भी, नो अचीवमेंट इज लाइक नॉट अकाउंटेबल, बट ऐसा नहीं है कि यू आर रेगुलरली पोस्टिंग के आज मैंने कैलकुलेटर बना दिया पाइथन पे, आज मैंने टू डू लिस्ट बना दी। तो लाइक वो चीजें लाएं जो अकाउंटेबल हैं, कल को अगर एज अ रिक्रूटर I will come to your profile or someone else will come to your profile, he may see, वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपके लिंक्डइन को इतना डीपली एक्सप्लोर करें, बट इफ ही may see और उसको टॉप पे अगर शो होता है तो वो ऑब्वियसली इट विल डिफाइन हाउ ही लुक्स एट यू, बिकॉज एक मेंटालिटी होती है कि इफ ही हैजंट मेट यू इवन, ठीक है, उसको एक पॉइंट भी अगर उसको एक ना नेगेटिवली आई कैचिंग मिल गया ना, तो उसने पूरा परसेप्शन वैसे बना देना है, फिर बाकी अच्छे पॉइंट्स भी उसको लगना है कि ही हैज फेक्ड इट। तो ये एक परसेप्शन होता ही होता है। एंड उसके अलावा यस, completely write detail about as your all of your experiences,
उसके बारे में लिखें, आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंडोर्समेंट्स, तो अगेन गिवन रिकमेंडेशंस दें भी, और आस्क फॉर रिकमेंडेशंस एज वेल। और एंडोर्समेंट आप बहुत ज़्यादा लोगों से ले सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एंडोर्समेंट आप कैसे ले सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल कोई वर्कशॉप अटेंड की, ठीक है, नॉट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिस वर्कशॉप, जो फिजिकल वर्कशॉप, एक प्रॉपर एक वर्कशॉप हो, ठीक है, मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में भी हम लोग भी अरेंज कराएंगे बहुत ज़्यादा इन द नेक्स्ट सेमेस्टर इंशाल्लाह, दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड। तो उसमें मे बी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर देयर, ठीक है। आपने एक चीज है, मैं कहता हूँ क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग ना, ये डिफाइन करती है कि हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, ठीक है। तो कोई वर्कशॉप में बैठा हुआ है, मैं उस वर्कशॉप की बात करूँ, जैसे हमारे पास रिसेंटली हुई भी थी एक, जिसमें पीटीए के प्रेसिडेंट भी, डायरेक्टर्स भी आए हुए थे, वी हैड द एक्स डायरेक्टर ऑफ एफआईए एज वेल, एंड अ ह्यूज लिस्ट। तो उसमें जहाँ तक बात आती है, तो उसमें अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे, अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे, एक जो अच्छा सवाल होता है ना, वो जो जो जिससे आप पूछते हो, उसके ज़हन में भी ना आपकी पिक्चर बन जाती है, यू नो एक अच्छी पिक्चर बन जाती है। देन यू कैन रीच आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन, यू कैन आस्क फॉर एंडोर्समेंट, और सोफा ऐसे लोग दे देते हैं, ठीक है। और ये ह्यूज प्लस होगा, मे बी अगर आप खुद बताओ, यू नो इग्नोरिंग द फैक्ट कि भाई हमारा पीटीए का इदारा कैसे ऑपरेट करता है, बट स्टिल अब पीटीए का डायरेक्टर आपको कल आके अगर आपको एंडोर्समेंट देता है, तो इट्स अ ह्यूज प्लस फॉर योर एंड अ ह्यूज प्लस फॉर योर क्रेडिबिलिटी ऑन लिंक्डइन, ठीक है। और जहां तक पोस्ट की बात है, हाउ फ्रिक्वेंटली यू शुड पोस्ट, आई डोंट थिंक सो कि हफ्ते में एक या दो पोस्ट से ज्यादा जरूरत है फॉर पीपल हु आर गेटिंग इनटू द करियर, ठीक है, जिन्होंने अभी 2 3 साल 4 साल है, मतलब क्या 2 3 साल भी डिफाइन नहीं करते, बेसिकली डिफाइन करते हैं व्हाट जॉब रोल यू आर इन, ठीक है। इफ यू आर एमिंग एंड इफ यू हैव परसेप्शन ऑफ अ मैनेजमेंट पर्सन, ठीक है, ठीक है, एंड यू आर एट मे बी एट अ लेवल ऑफ सीएक्सओ, ठीक है, कोई भी चीफ पोजीशन पे हो आप, तो उस पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे ज्यादा पोस्ट। क्यों? क्योंकि पीपल रेगुलरली पोस्ट कि भाई वी साइंड एन एमओयू विद दिस कंपनी, वी विजिटेड दिस कंपनी, वी हैड अ सेमिनार ऑन दिस टॉपिक, एंड और जो जो सीएक्सओ लेवल के लोग होते हैं, यूजुअली बड़ी कंपनीज की मैं बात करूं, तो रेगुलरली वो किसी न किसी सेमिनार्स में जा रहे होते हैं, इवेंट्स में जा रहे होते हैं, मे बी एज अ गेस्ट और मे बी एज अ स्पीकर, और मे बी उन्होंने खुद अरेंज कराई हुई होती है। सो एक चीज है कि दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इवेंट्स रेगुलरली, वेरी फ्रीक्वेंट वैल्यूएबल इवेंट्स दैट दे कैन पोस्ट अबाउट, ठीक है। बट इन इन अ केस लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं फॉर एग्जांपल, तो रेगुलर बेसिस पे मैंने क्या कर लेना है, मतलब एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में मैंने कितने ही सेमिनार्स अटेंड कर लिए हैं उन्हें एज अ गेस्ट और एज अ, यस, इफ यू आर अटेंडिंग रेगुलरली देन वेल एंड गुड। कोई भी एक नोटेबल अचीवमेंट है, यू शुड पोस्ट इट, दैट इज द की। और वही बात है कि जो अचीवमेंट्स जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत हटके हैं, जैसे कि कैलकुलेटर मैंने बना लिया या बना लिया, इसको इन माय ओपिनियन you should not post these. That is my opinion. ठीक है, अच्छा, एंड कंटिन्यूस लर्निंग, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आईटी इंडस्ट्री इज नॉट फॉरगिविंग इन दिस मैटर, ठीक है, कि वो अगर आपने लर्निंग छोड़ी है तो ऑब्सलीट हो आप, ठीक है। द इंडस्ट्री डजंट नीड्स यू, द इंडस्ट्री डजंट वांट्स यू, द इंडस्ट्री विल नॉट कीप यू, ठीक है। तो ये एक चीज है ध्यान में रखने वाली कि ये हर इंडस्ट्री का बंदा कहता तो है कि भाई लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की या सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जितनी सीरियसली आईटी इंडस्ट्रीज को लेती है ना, उतनी ये कोई और इंडस्ट्रीज को नहीं लेती। डू और डाई वाली सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले भी इस चीज को वी हैव गॉन थ्रू इट। ओवरकमिंग चैलेंजेस, यस, काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। ये हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशनल या हर जो भी बंदा अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता है, दे फेस इट, इट्स अ रियलिटी एंड इट्स अगर आपको भी फेस हो रहा है तो मे बी बाकियों का इट्स लाइक गुड टाइम, तो वी मस्ट नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स। आपकी रेस आपकी खुद से है, किसी और बंदे से नहीं है। यू आर आप जो करियर और किसी भी चीज में यू आर, आपकी जो रेस है वो आपके खुद बंदे से है कि भाई मैं 6 महीने पहले या 1 साल पहले एट व्हाट पॉइंट आई वाज एंड एट व्हाट पॉइंट आई एम नाउ। फाइंडिंग योर फर्स्ट जॉब, इसको मतलब काफी सारे बिट्स एंड पीसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट। रेगुलर आप मीटअप्स और इनमें ये नेटवर्क बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी में जैसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, नॉट सेइंग कि देयर इज ओनली दिस वन कम्युनिटी इन योर यूनिवर्सिटी दैट यू हैव अवेलेबल। साइबर एक्टिविटीज क्लब इज वन कम्युनिटी, वन क्लब, स्टूडेंट क्लब,
जो कि नॉट सिर्फ कॉमसेट्स में बेस करता है, उसमें और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं. उसके अलावा वी हैव अ कंप्लीट कंसेप्ट सब कम्युनिटी ऑफ मेंटोर्स, ठीक है, जिसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली साइबर के एज वेल एज कुछ सॉफ्टवेयर के भी, एंड मेनली मतलब आईटी इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो फर्दर, और वी हैव द सब इंडस्ट्रीज ऑफ आईटी, जिसमें वी डिफरेंशिएट, हम सिक्योरिटी को अलग करते हैं, सॉफ्टवेयर को अलग करते हैं, डेवऑप्स को अलग करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वी हैव अ सेपरेट सब कम्युनिटी ऑफ मेंटोर्स एज वेल, ठीक है. Or we regularly invite them for workshops as well, and they also visit on other events that we do, like a CTF that we had arranged last semester. So ये सारी चीजें हैं कि इसमें you gain exposure. जिसने CTF में participate किया उसने उस वक्त उन लोगों से उसने अपना नेटवर्क बनाया है कि जो already they were the top team of all the other universities of Pakistan. नेशनल लेवल पे हुआ था कंपटीशन, क्योंकि और क्वालिफायर्स के बाद वहाँ पे टॉप 15 टीम्स आई थी. जो टॉप 15 में है, जो 15th नंबर पे भी जो टीम है ना, उसने भी अपना नेटवर्क बनाया है टॉप फर्स्ट टीम पे भी, फर्स्ट टीम वाले पार्टिसिपेंट से भी. सो यू सी, दिस इज द वे द नेटवर्क इज बिल्ड. उसके अलावा जो गेस्ट स्पीकर्स आए थे, जो मेंटोर्स आए थे, जो प्रोफेशनल्स आए थे वहाँ पे, सो दे ऑल्सो गॉट टू नो देम, दे गॉट टू नो देम बेसिकली. तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन काम को जताना से बहुत जरूरी है, एंड यस, एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये तो चलो इसको मतलब मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है इन चीजों को. दिस इज लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स. कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यस. अच्छा, पाकिस्तान में एक मजे की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्सो एन एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव शेयर्ड, एंड आई हैव गॉटन द सेम रिस्पांस फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशनल्स हु आर a lot of other professionals जो अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, not just the people who are working or doing a job. They are running their own companies, they are providing jobs to the industry, to the community. तो एक बात है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे या जो मीडिया लेवल पे द वन थिंग इज टोल्ड के जॉब्स नहीं है. ये मोस्टली जो ग्रेजुएट्स है, ठीक है, मे भी ये बात बुरी लगे, यूनिवर्सिटी में एक इमेज दिखाई जाती है, ठीक है, एंड दिस इज अ रियलिटी, ठीक है, व्हिच यू मे some of the people may realize now, some of the people may realize when they जब डिग्री भी हाथ में है, घर वालों का भी प्रेशर है, हर जगह से प्रेशर है, a lot of deadlines are to be met basically in terms of life goals, but तब जाके बात समझ में आई कि भाई जो हमें एक ख्वाब दिखाया गया था, जो हमें एक बहुत ही एक अच्छी पिक्चर या एक परफेक्ट पिक्चर दिखाई गई थी कि भाई हम कॉमसेट्स में हमें मिल गई डिग्री. सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, नो डाउट, इट्स अ गुड अचीवमेंट, राइट. लेकिन अब मतलब कि ये दिखाया जाता है कि बस आपने अच्छी जीपीए लानी है, एंड यू हैव टू फोकस, यू हैव टू वर्क विद योर टीचर्स, जो टीचर्स ने कहना है आपने वो सुनना है, एंड जब आपको डिग्री मिलेगी तो इट्स लाइक वो कहते हैं ना, इट्स देन यू हैव विद दैट डिग्री, वो एक डिग्री है कि जिसके आपको कोई भी कंपनी में जाएंगे, कॉमसेट की डिग्री दिखाएंगे एंड यू विल गेट अ जॉब. यही बात फास्ट वाले कहते हैं, यही बात नस्ट वाले कहते हैं, यही बात कायदे आजम, इस्लामिया, बहरिया या हर यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हमारी डिग्री से आपको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि बाकी यूनिवर्सिटी की डिग्री से आपको नहीं मिलती, विच इज जो चीज़ है, ये रियलाइज हर स्टूडेंट करता है, हर बंदा करता है, और बाद में सब लोग यही कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं. जबकि अगर आप पूछो जो जॉब्स देने वाले हैं, जो कि कंपनी ओनर्स हैं, उनसे पूछोगे तो दे विल से कि कैंडिडेट्स नहीं है. सो यू सी, दिस इज अ डिलेमा कि भाई जिसको जॉब चाहिए वो कह रहा है कि जॉब्स नहीं है, जिसने जॉब देनी है लोगों को वो कह रहा है कि जॉब्स करने वाले या जॉब्स देने वाले लोग नहीं है. मसला कहाँ पे आता है कि देयर इज अगेन अ ह्यूज गैप बिटवीन जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो 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 जिनको जॉब चाहिए उनके पास जो है, और जो इंडस्ट्री को चाहिए, व्हाट द इंडस्ट्री वांट, वो कम्युनिटी उनको नहीं प्रोवाइड कर रही, जो कैंडिडेट्स की या जॉब एप्लीकेंट्स की कम्युनिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर रही. तो ये एक मेजर बड़ा मसला है हमारी इंडस्ट्री का, और मेजर बड़ा गैप है कि जिसमें जो कंपनीज हैं वो कह रहे हैं कि हमें अच्छे स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे, और जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही. तो इसमें हाउ यू कैन अवॉइड अ सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, इन माय ओपिनियन वुड बी कि आप कॉन्स्टेंटली एनालाइज करो इंडस्ट्री को, स्टे इन टच विद द इंडस्ट्री, ठीक है.
भले आप स्टूडेंट हो, भले आप अभी सीख रहे हो, यू आर सेइंग कि भाई अभी मैंने डिग्री आनी है, मैंने मेरी मास्टर्स भी करनी है, उसके बाद जाके मैंने इंडस्ट्री में जाना है. इट्स अप टू यू, दैट्स योर डिसीजन. बट डू नॉट कट योरसेल्फ फ्रॉम द इंडस्ट्री, क्योंकि कल को आपने वहीं पे जाना है. ठीक है. और कल if you do not know the place where you are planning to go, where you're putting 4 साल 6 साल जितने भी आप अपने लगा रहे हो जिंदगी के, मे बी तो 4 साल तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी काउंट कर रहा हूँ, नॉट द होल एजुकेशन यू गॉटन बिफोर दैट. तो और आपको उसी जगह का ही नहीं पता, उसके साथ आप टच में ही नहीं हो, तो आई वुड से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बेसिकली. तो ये चीज है. उसके अलावा यस, अगेन जैसे कि हमने कहा कि जो जॉब देने वाले हैं उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही मिले जो उनको मर्जी के हैं. तो अगर आप उनमें से बन जाओ, सो आपके लिए बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है. ठीक है. बिकॉज बात सारी ये है कि अगर 1000 लोग मौजूद हैं, एंड फ्रॉम दैट 1000 पीपल 990 कैन नॉट प्रोवाइड व्हाट द डिमांड्स आर. जो 10 जो प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी वैल्यू शूट अप कर जाती है. ठीक है. वही बात है ना कि जब सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली जो हैं 10 लोग भी हैं अगर, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. दे विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स. ये एक उसूल है. ठीक है. ऑब्वियसली लेकिन दे हैव टू बी वर्क फॉर इट. ठीक है. हाँ. अच्छा किरण, क्या सवाल है, व्हाट डज द इंडस्ट्री वांट? अच्छा, इंडस्ट्री में ना काफी सारी चीजें हैं, जैसे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, दे आर ईदर प्रोवाइडिंग द इंडस्ट्री विद people who just know what they learned. ठीक है. जहां तक बात आती है, दे नो कि भाई ये SSRS का डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है. ठीक है. अगर कोई भी यहाँ पे 5th 6th सेमेस्टर से है, 6th सेमेस्टर से आगे SSRS के बारे में पढ़ाया जाता है CS और SC के स्टूडेंट्स को. SSRS is a document basically which is an acronym to software. SSRS is software. Okay, मैं भी भूल गया हूँ, मुझे याद था, अभी भी ज़हन में था, मैं लिटरली मेरे ज़हन से निकल गया. RS is for requirement specification and SS का मैं भूल गया हूँ फुल फॉर्म, मेरे दिमाग से निकल गया है बिल्कुल ही. तो बट इट्स अ स्कोप डॉक्यूमेंट. इट्स अ स्कोप डॉक्यूमेंट. अच्छा, SRS होता है. ठीक है, मैं भी SRS कह रहा हूँ. SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, मुझे याद सही था, बस एक्रोनिम में गलत बोल रहा था. ठीक है. SRS होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि बेसिकली स्कोप डिफाइन करता है. और आपको जब आप FYP बनाओगे ना, तब आपको एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कि आपको कम से कम 200 से 300 पेजेस का SRS सबमिट कराना है, हैंड रिटन, ईच वर्ड आपका कस्टम मेड. ठीक है. अब वो बात अलग है आप कैसे जनरेट कराते हो, आप कितनी AI की हेल्प लेते हो नहीं लेते, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. कि दे वांट एन SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि स्कोप डिफाइन करता है, कंप्लीटली बाउंड्रीज डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर की. अब एक जो ग्रेजुएट निकलेगा उसको वो तो आता होगा. ठीक है. अब वही बात है, उसने अपने FYP में कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है. ठीक है. मैनी पीपल, मैंने देखा है कि CS और SC के स्टूडेंट्स भी AI के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, और ये अभी की बात नहीं है, 4-5 साल से चलता आ रहा है ट्रेंड. इवन सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे पास, अगर आप कभी थोड़ी नजरसानी करें तो वो भी AI के जो मतलब वो भी AI के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं सिक्योरिटी में. उनके सिक्योरिटी का बहुत छोटा सा मॉड्यूल होता है, बहुत बेसिक चीज उन्होंने सिक्योरिटी की उठाई होती है, बाकी सारी की सारी उन्होंने ना ML इंप्लीमेंट की हुई होती है. ठीक है. और ये बहुत कॉमन है, यहाँ के मास्टर्स लेवल पे भी हो रहा है, या आपकी PhD लेवल पे भी हो रहा है, और लोगों को PhD की डिग्रियां भी मिल रही हैं वही काम करके, जो कि 4-5 साल से हर बंदा वो PhD वाला कर रहा है. सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूँ, जबकि दुनिया का उसूल है कि PhD की डिग्री तब तक अवॉर्ड नहीं की जा सकती जब तक कोई आप यूनिक चीज ना करो. ठीक है. यू डू नॉट राइट अ पेपर विच इज पेटेंटेड, बाद में पेटेंट किया कराया जा सके. तो दिस इज ये एक ह्यूज गैप है. तो आपको वो चीज सीखनी है जो कि इंडस्ट्री को चाहिए. इंडस्ट्री को चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ रही हो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, आपको जो अब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. किन की? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की सॉल्व नहीं करनी. आपने सॉल्व करनी है मे बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, मे बी पेपर प्रोडक्शन इंडस्ट्री की, मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की. किसी न किसी एक कन्वेंशनल बिजनेस को यू हैव टू डिजिटलाइज इट. बैंकिंग इंडस्ट्री भी ऐसी डिजिटलाइज हुई है. मे बी कल को आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, दे आर वर्किंग विद सम फिनटेक, दे देमसेल्व्स आर फिनटेक, कि जो कि एक किसी फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है. सो देन आपको सिर्फ ये नहीं है, योर कैपेबिलिटी मस्ट नॉट बी कि भाई आपको बताया जाए कि भाई आपने ऐसी एंड पॉइंट या ऐसा पेज बनाना है जिसमें यहाँ पे लोगो हो, यहाँ पे ये हो. नहीं, आपने खुद डिफाइन करनी है ये चीज. आपने खुद समझना है कि एज अ यूजर, अगर मैं यूजर हूँ इस कंपनी का जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम
आई एम वर्किंग ऑन सम सॉफ्टवेयर जो कि अगेन अकाउंटिंग कंपनीज के लिए है, अकाउंटेंट्स के लिए बना हुआ है। तो मुझे पहले तो उनका समझना है कि अकाउंटेंट्स हाउ डू दे वर्क, ठीक है, क्या उनका प्रोसीजर है। मुझे पहले मतलब 10-20% मुझे अकाउंटिंग सीखनी है, क्या ओनली देन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई कैन वर्क विद देम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि एक अकाउंटेंट्स की है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट मुझे लिख के देगा कि भाई मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के जिसमें ये ऐसा हो रहा है। दे कैन नॉट डू दैट। उनके पास इतना हाउ वुड से दे आर नॉट दैट मच आईटी लिटरेट। और ये मतलब ये दिस इज नॉट की बुराई नहीं है, क्योंकि उनका काम है अकाउंटिंग करना। दे आर मास्टर्स ऑफ देयर इंडस्ट्री, देयर वर्क। आपने फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर वर्क एंड देन implement that digitally and even automate it as much as it is possible, because that's the key thing why companies shift to digitalization, shift to softwares and all that. ठीक है, अच्छा, there's one more message in the chat. How to decide next like etc. हाँ, ये हमारा टॉपिक था आफ्टर दिस स्लाइड्स। मैंने इसी टॉपिक पे आना था कि जो कैरियर पाथ्स हैं हमारे पास, वो मल्टीपल पाथ्स हैं। अब इट डिपेंड्स, ठीक है, मतलब मैं अभी मैं जो बात बोलूंगा, इट डिपेंड्स कि आप सीएसएससी के स्टूडेंट्स हो, यू वर पैशनेट क्योंकि आपने सीएसएससी चूज की है, ठीक है। तो सीएसएससी ऐसे दो डिग्रीज हैं जिनमें यू हैव क्वाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। एससी में ऑब्वियस, एफसी में देयर इज लेस लाइकली कि यू शिफ्ट टू एआई और other जो सब इंडस्ट्रीज हैं, CSSC AI, then we have secure cybersecurity as well, then we have machine learning as well. So मतलब और भी बहुत सी सब इंडस्ट्रीज हैं। तो SC वाले they have their perception already decided कि भाई हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। CS वालों का also they have to go to AI, they have other options as well. So उनके पास एक वाइडर वैरायटी है। अब what I would suggest, ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी जो हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक इत्तेफाक से आया हूँ, जो सीधी बात, समटाइम्स जब भी एक चीज है कि लोगों का एक परसेप्शन होता है कि अगर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी इलॉन मस्क, इफ यू सी मार्क ज़ुकरबर्ग को, अगर आप कंसीडर करते हो मार्क को सक्सेसफुल पर्सन या नहीं, दैट इज योर ओपिनियन। स्टीव जॉब्स को अगर आप देख लो, या और भी बहुत सारे ये लोग हैं, ठीक है, वी से टू देम कि वही वो लकी हो गए। जैसे कि इलॉन मस्क की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आप कहोगे कि भाई उसके ज़माने में तो इंटरनेट थी नहीं, उसके ज़माने में तो ये एक्टिव डायरेक्टरीज थी नहीं, तो उसने तो सिंपल वेबसाइट बना दी येलो पेजेस के नाम से। अगर किसी को येलो पेजेस का नहीं पता, आई विल टेल यू, येलो पेजेस पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। अगर घरों में भी इस्तेमाल होते थे कि जिसमें पूरे एरिया के एक किताब होती थी जिसमें नंबर्स लिखे होते थे कि भाई, क्योंकि उस वक्त स्टोरेज नहीं थी कोई, इट वाज ऑल लैंडलाइंस, राइट। तो उस वक्त ना सारा का सारा इन किताबों में यू सी दीज येलो पेजेस, इसको येलो पेजेस कहते हैं। तो उस वक्त इसका ट्रेंड था। तो अब उस वक्त नई नई इंटरनेट आई थी, नई नई वेब पेजेस थे, तो इलॉन मस्क क्रिएटेड हिज साइट, आई डोंट रिमेंबर द नेम। उसने उसको क्या नाम दिया था, बाद में उसको येलो पेजेस का नाम दिया गया था, पहले ही नेम्ड इट समथिंग एल्स, उसने वो बना दिए। अब फॉर टुडे स्टैंडर्ड इवन मतलब ये एफआईपी भी नहीं माना जाएगा अगर आपने येलो पेजेस की कोई साइट बना दी, कि बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है आजकल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो यू वुड से कि भाई जो उसने उस वक्त करके इतना ज्यादा कमाया, वो आज के लेवल करे तो इट्स लाइक नेग्लिजिबल। तो वही बात है, यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड जो उस बंदे को मिला था पहले किया। उसके बाद उसने x.com पे काम किया। x.com इज वाज द फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ठीक है, जो कि बाद में ईबे ने परचेज किया और बाद में उसको रीनेम कर दिया गया पेपाल। पेपाल की फाउंडेशन थी वो इलॉन मस्क की तरफ से रखी गई थी अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है, बट मेन जो प्रोमिनेंट फिगर आजकल दिखाई जाती है वो इलॉन मस्क की दिखाई जाती है। सो ही वर्कड ऑन डेवलपिंग x.com, जो कि दुनिया का सबसे पहला पेमेंट गेटवे था, और वो बाद में ईबे ने परचेज किया था फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सम बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसमें उसका शेयर भी $300-400 मिलियन का था, जिसने उसने फिर टेस्ला और फिर स्पेसएक्स स्टार्ट की। अब हम कहेंगे भाई वो लकी हो गया, आजकल तो पेमेंट गेटवेज बनाने में भी प्रॉफिटेबल नहीं है, so on and so forth। बात ये होती है कि आपको a person who is working in the right direction and putting a lot of effort, he's a hard worker, वो खुद को एक्सपोज करता है ज्यादा लकी इवेंट से, ठीक है। अगर मैं बैठ के फॉर एग्जांपल, मैं रोज बैठ के फॉर मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरे 2 महीनों के वो चल रहे हैं, 2 से 3 महीने के यू कैन से समर्स चल रहे हैं, ठीक है। आपका सबका केस हो लेते हैं कि 3 महीने के आपके पास समर्स चल रहे हैं एंड यू एंजॉय इट। एक तरीका आपके पास है कि आप एंजॉय करो, गो ऑन ट्रिप्स टूर्स, मतलब दैट इज आल्सो नेसेसरी। आई एम नॉट सेइंग कि भाई नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, दैट इज आल्सो नेसेसरी।
उसके अलावा आप यू डू नॉट वर्क ऑन योरसेल्फ, यू नॉट अपस्किल योरसेल्फ, तो फिर मतलब लक कहाँ से मिलेगी आपको? मतलब सीधी बात है। अब वही बात है कि पैसों का दरख्त तो नहीं उग जाएगा गार्डन में। तो जो बंदा अगर दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ही विल, अपॉर्चुनिटीज उसकी नजर से गुजरेंगी, ही इज ट्राइंग टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज, और उसके सामने कोई ऐसी लकी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है, जो कि इट कैन बी शेप ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में हो सकती है, बट व्हेन यू आर वर्किंग आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी सेट करेंगी। और हाँ, एज फॉर पाथवे, जो कि किरण का क्वेश्चन था, दैट इज के आपको, व्हाट माय सजेशन वुड बी कि आप हर पाथ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो। इफ यू आर रियली कंफ्यूज, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपने किस एआई में जाना है, एसई में जाना है, एमएल में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, या किस भी फील्ड में जाना है आपने, इफ यू डू नॉट दो, अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में यू डू नॉट हैव द स्पार्क, ठीक है, तो आपके लिए ये है कि फिर देन यू शुड ट्राई ईच वन बाय वन। कुछ ज्यादा ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं, यू कैन इजीली लर्न विद इन अ फ्यू वीक्स और मैक्सिमम अ मंथ, ठीक है। एक मंथ को ज्यादा नहीं है करियर चॉइस चूज करने के लिए, ठीक है, एक 1 मंथ इज नथिंग, ठीक है। तो वो आपको समझ में आता है, गो फॉर इट। उसमें फिर फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दीज आर बोथ अदर थिंग्स। आपको ज्यादा डिजाइनिंग का शौक है, जैसे कि देखो, आई वुड से इट्स अ वेल डिजाइंड वेबसाइट, ठीक है। एक बैकएंड डेवलपर दिखाओगे, वो कहेगा नहीं मुझसे ये काम ना कराओ, मुझसे भले कितने भी एल्गोरिथम्स लिखवा लो, ठीक है। आई बैकएंड डेवलपर कहेगा मुझसे ऑप्टिमाइजेशन करवा लो, मुझसे नंबर्स क्रंच करवा लो, मुझसे एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लिखवा लो, आई एम गुड एट दैट थिंग, ठीक है। एक सॉफ्ट बैकएंड डेवलपर कहेगा। एक फ्रंट एंड कहेगा नहीं, मुझे वो समझ ही नहीं आती, ठीक है, नंबर्स मेरे सर के ऊपर से गुजरते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन है, इतनी मेहनत मैंने करनी ही नहीं है, बस आई जस्ट नीड टू प्रोवाइड अ गुड डिजाइन, ठीक है, और मेरा डिजाइन सेंस अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक फ्रंट एंड की तरफ जाएगा ऑब्वियसली। एंड so on, we have other fields as well, जैसे मोबाइल ऐप है, उसमें दोनों चीजें रहती हैं थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीजें कि यू शुड एक्सप्लोर, यू नीड टू एक्सप्लोर, अगर आपने डिसाइड करना है कौन सा पाथवे है, ठीक है। और हाँ, अब इसमें एक चीज है, पाथवे जब डिसाइड कर लो ना आप, तब कुछ चीजें हैं जो कि रिसर्च के लिए होती हैं, जैसे कि उस पर भी हम मूव ऑन करते हैं अभी। मैंने एक बात की मन स्टैक की और पाइथन जेंगो की, ठीक है। और मैंने खुद ये क्यों चूज की है, मैंने स्टार्ट तो पाइथन जेंगो से किया था, बिकॉज पाइथन इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन को यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? कि पाइथन में हर काम होता है, पाइथन में मशीन लर्निंग भी होती है, पाइथन में एआई भी होता है, पाइथन में सिक्योरिटी भी होती है, पाइथन में वेब डेवलपमेंट भी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होती है, पाइथन में आपके टूल्स भी बनते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो मैक पे भी यूज होते हैं, लिनक्स पे भी यूज होते हैं, जो ऑल्सो विंडोज पे भी यूज होते हैं। ऑल्सो पाइथन में डेवऑप्स की स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, पाइथन में सर्वर ऑटोमेशन भी की जाती है। सर्वर और पाइथन की वैसे ही जो सिंटैक्स है वो काफी सूडो कोड जैसा होता है, तो इट आल्सो हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस व्हिच आर यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि डेवऑप्स बंदे की बात करूं तो वो टेराफॉर्म यूज करता है, वो कुबरनेटिस यूज करता है, तो उसको भी YAML फाइल्स के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, या RTF फाइल्स के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो व्हिच इज सिंटैक्स जो है काफी लाइक इट्स मोर familiar for a Python programmer rather than other programmers, ठीक है। और जहां तक बात है कि वेदर कंपनीज यूज पाइथन अ लॉट, अब इसकी मैं एक बात बताता हूँ आपको। इंडस्ट्री में ना, अगर मैं वेब की बात करूँ, बिकॉज कि वेब एक ऐसी चीज है कि आई वुड से कि इट्स द मोस्ट इजीएस्ट पाथ, मेरा मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कि वेब सबसे आसान पाथ है इंडस्ट्री में आने के लिए। तो अब पाइथन जेंगो जो है ना, ये मैंने जब शुरू किया, स्टार्टेड इन 2020, राइट। 2020 में पाइथन जेंगो पे काम करता था, तब इंडस्ट्री में कोई भी बहुत रेयरली काम होता था इस पे। कराची में जिस कंपनी में मैंने भी काम किया, जिस कंपनी में मैंने बात की है, जब कराची में बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, इट इज कराची एंड लाहौर इज द आईटी हब ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी भी इंडस्ट्रीज का है, लेकिन अगर हम आईटी की एग्जांपल है, तब भी आईटी हब ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो उधर भी जिस भी कंपनी के साथ हम लोग बात करते थे, दे नेवर न्यू कि दिस एग्जिस्टेड इन, कि पाइथन जेंगो पे इतनी एप्लीकेशन बनती हैं। लेकिन अगर आप देखो, I guess it's Twitter or Instagram, ठीक है, which is built on Django. Twitter is built on Django. JavaScript से Java है, but then it would be Instagram, ठीक है। तो Instagram की जहां तक बात आती है, तो Instagram ने Django पे अपनी साइट बनाई थी, the starting phases of Instagram, और 1 बिलियन यूजर्स, एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन अगर आपने बनाई है किसी भी लैंग्वेज पे, और भी लैंग्वेजेस हैं आपके पास, लारावेल है आपके पास, मर्नस्टैक है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अदर, गो भी है, रस्ट भी है। इतना इंडस्ट्री में कॉमनली यूज नहीं होता पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, बट दीज आल्सो आर लैंग्वेजेस टू राइट बैकएंड ऑन। तो जहां तक बात आती है इंस्टाग्राम की, तो उसने 1 बिलियन यूजर्स तक स्केल अप किया है, सिंपल सिर्फ एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को
हम आर्किटेक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे monolithic, जैसे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा लेटर इन द सेशन जब हम डेमोस पे आएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा आई गेस टॉकेटिव सेशन हो गया। तो जहां तक बात हम डिस्कस कर रहे थे जेंगो की, तो जेंगो एक monolithic एप्लीकेशन है जो कि यूजुअली इट हैज लिमिट्स। इट हैज लिमिट से क्या मुराद है कि ऑप्टिमाइजेशन वाइज, लोड वाइज वो जल्दी एक ना वो हो जाती है, थक जाती है एप्लीकेशन, स्लो हो जाती है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं बर्दाश्त कर पाती, उसको ज्यादा स्केल अप नहीं किया जा सकता। बट जेंगो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल फ्रेमवर्क्स दैट एग्जिस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स से क्या मतलब है कि ये मतलब ये पहले से ही हुआ होता है अच्छा खासा स्केलेबल। बाकी एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब उसको कॉन्फ़िगर बहुत ज्यादा डेवऑप्स की टीम लगानी पड़ती है, एक्सपीरियंस डेवलपर्स की टीम लगानी पड़ती है, तब जाके वो दे वर्क ऑन द ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब तक जेंगो की एग्जांपल ले तो जेंगो इज प्री ऑप्टिमाइज मोस्टली, 100% तो कभी भी नहीं, बट ऑब्वियसली लाइक काफी हद तक, ताकि इंस्टाग्राम ने भी देखें कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एक सिंगल सर्वर के साथ 1 बिलियन यूजर तक स्केल अप किया है। उसके बाद दे ऑब्वियसली हैव टू गो टू द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है कि अब इंस्टाग्राम बहुत पहले का है, तो भारत दुनिया में तो काम होता था, ठीक है। पाकिस्तान की एग्जांपल ले तो पाकिस्तान में जेंगो को भी जानता भी नहीं था, किसी ने किसी को पता भी था तो इट वाज पाइथन फ्लास्क। फ्लास्क एक अलग फ्रेमवर्क है जेंगो पाइथन का। पाइथन मे बी आपने लोगो देखा हो ये वाला, पाइथन वर्सेस फ्लास्क वर्सेस जेंगो लिखे थे लोगो से, खाता मे बी पीपल डिटरमाइन पहचान लेते हैं लोगों को देखते कि उन्होंने यहाँ पे कहीं और पे देखा था। जो फ्लास्क का लोगो है ये जेंगो का लोगो है। तो फ्लास्क वाज मार्केट में इन थी, जेंगो नहीं थी। और जेंगो अब जाके जाके तकरीबन 2 साल पहले तक आई हैव सीन कि भाई कुछ कंपनीज हैव अडॉप्टेड इट, उसमें काफी मेजर कंपनीज भी आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैव अडॉप्टेड इट, ठीक है, जेंगो को। और इसमें मजे की बात यह है कि मैं कंपेयर नंबर्स तो नहीं करूंगा कि मर्न पे कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, कितनी कंपनी जेंगो पे काम कर रही हैं। ऑब्वियसली पाइथन जेंगो की कंपनीज कम है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है कि मर्न का लर्निंग कर्व है ना बहुत स्मूथ है, मतलब आसानी से सीख सकते हो। जेंगो को सीखना काफी स्टीप है, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैं नहीं, वैसे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है जेंगो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप विद इन अ वीक सीख सकते हो, काफी बेसिक हद तक अच्छे काम कर सकते हो विद इन अ वीक, अगर सही से आप डेडिकेटेडली मेहनत करो। बट कंपैरिजन देखा जाए तो एक्सप्रेस से यस नो डाउट उसका लर्निंग कर्व काफी स्टीप है। तो इसके जो जो मार्केट में लोग हैं ना काम करने वाले इस टेक्नोलॉजी पे, वो बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत कम मिलेंगे आपको डेवलपर्स जो बोलेंगे मैं पाइथन जेंगो पे काम करता हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ। जो मैंने देखे भी हैं काम करते हुए, दे वर्क ऑन वेरी बेसिक, मैंने वही बात बताई है, जो एक वीक में जितना बंदा सीख लेता है उतना वो काम आता है, उससे आगे एक दो दो तीन तीन साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, दे हैव नॉट ग्रोन देमसेल्व्स, दे हैवंट वर्कड ऑन देमसेल्व्स। जबकि जेंगो को अगर आप सही से सीख के सही से करो तो इट इज हाउ आई वुड से रियली एफिशिएंट, कि आपका काम बड़ी जल्दी हो जाता है इसमें कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। लेकिन खैर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग जेंगो के बहुत कम मिलेंगे, जबकि मर्न की काफी ज्यादा इन है, ट्रेंड ट्रेंड में है मर्न। तो इस वजह से मर्न के आपको लोग भी ज्यादा मिलेंगे, जॉब्स भी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन जेंगो के आपको लोग बहुत कम मिलेंगे लेकिन जॉब्स डिसेंट हैं, कंपटीशन बहुत कम है जेंगो में। एंड अगर सैलरीज की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो मोर डिसेंट देन मर्न, कि मर्न हर कोई कर रहा है, जेंगो हर कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, आई गेस काफी ज्यादा हमें टॉक सेशन हो गया, थोड़ा मूव करते हैं हम लोग थ्रू द इंटरेक्टिव सेशन। और ब्रेक चाहिए लोगों को, आप सबको? डू यू गाइस वांट कि हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर इंटरेक्टिव सेशन पे जाएं, यहाँ पे डायरेक्टली हॉप इन कर दें? एनीवन एल्स? अभी से उस्मान ने हाथ खड़ा किया, उसके अलावा कोई? मेरा वोट मैटर भी करता है इधर के नहीं, लाइक? नहीं, आपका वोट मैटर नहीं करता, आप कोई टीम के पार्ट हो, मॉडरेटर्स का वोट काउंट नहीं होता। ओके, फेयर वोटिंग स्कीम पे बिलीव करती है ऐसी ऐसी। आई गेस कंटिन्यू अच्छा, कर बर्ड लेते हैं, इज अगर सेइंग कंटिन्यू ओके, कर लेते हैं फिर। दफनान एंड अब्बास सेइंग कंटिन्यू। अच्छा, यस। बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द इंटरेक्टिव सेशन, मुझे सिर्फ इतना बता दें सब लोग की, मैं थोड़ा ऑडियंस को जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस में से कितने लोगों को प्रोग्रामिंग करना आती है एक अच्छे हद तक। आई एम नॉट सेइंग कि भाई बहुत अच्छी, एक अच्छे हद तक समझ में आता है कि भाई व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्या होता है, बेसिक कंडीशनल इटरेटिव लूप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बेसिक्स की हद तक किसको आती हैं, और थोड़ी बहुत होती कॉन्सेप्ट्स भी। क्योंकि देन मैं अगला सेशन उस हिसाब से स्पीड थ्रू करूंगा, आई विल डायरेक्टली मूव ऑन टू जेंगो एंड मर्न, ठीक है। रादर देन मुझे फिर वरना जावास्क्रिप्ट भी एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी मुझे, वरना फिर पाइथन भी एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, जिसमें वो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। मतलब बेसिक्स भी आती है ना, मतलब अगर कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यू विल एटलीस्ट, आपको ये मसला नहीं होगा कि भाई ये इफ क्यों लिखा हुआ है या ये फॉर क्यों लिखा हुआ है, इतना मसला अगर नहीं होगा तो देन वी कैन मूव अहेड प्रॉपर्ली।
I guess ठीक है, we can move ahead. Okay, that's great. ठीक है. So let me close these tabs a bit. Okay. So Visual Studio Code का तो सबको पता होगा. I think इसको तो हम नहीं रिपीट करने वाले अभी. Okay, so I have opened this code editor. ठीक है, just like any code editor, इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप कोड लिख सको. आप यही काम आप नोटपैड पे भी कर सकते हो, आप किसी और चीज पे भी कर सकते हो. But this is just more helpful, more integrated of an environment. ठीक है. So I will start with Python. ठीक है, हमें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है. We will directly go on to the demo. ठीक है. अच्छा, पाइथन में पिप का पता है सबको. पिप इज अ पैकेज मैनेजर जो कि जावास्क्रिप्ट में भी होता है, जैसे npm होता है. पिप इज फॉर डाउनलोडिंग पैकेजेस. पिप ये होता है कि पिप में आपके पास पैकेजेस होते हैं. पैकेजेस आर लाइक लाइब्रेरीज. ठीक है, आपने में भी अपने किसी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फर्दर ऑन किसी भी सेमेस्टर में यूज की हो कोई ना कोई लाइब्रेरी. सो पिप का ये होता है कि पिप पे आप डायरेक्टली ओके, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग एंड स्टार्ट अगेन. अच्छा, अब नजर आ रही है मेरी स्क्रीन VS कोड वाली भी? यस, अभी आ रही होगी. ठीक है. अच्छा, पिप की जहां तक मैं बात कर रहा था, पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, जो कि pypap.org इसकी मेन वेबसाइट है, जहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अपलोडेड होते हैं. सॉरी, लाइब्रेरीज अपलोडेड होती हैं, जिसको पाइथन में मॉड्यूल्स कहा जाता है मोर कॉमनली. ठीक है, तो मैं जेंगो सर्च करता हूँ. जो कैन सी के देयर इज अ लॉट ऑफ पैकेजेस एज वेल. अगर हम जेंगो की बात करते हैं तो पिप इंस्टॉल जेंगो. सो ये एक मॉड्यूल है, फ्रेमवर्क है. ठीक है, व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग working with applications, full stack applications with the monolithic architecture. और monolithic architecture में बार-बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली आपका काम monolithic पे ही होता है. ठीक है, जब आप बहुत बड़ी कंपनी में जाओगे ना, बहुत बड़ी कंपनी से मुराद है जो भी किसी एक सॉफ्टवेयर को इसको मेंटेन कर रही हो, जिसमें लेट्स से 5 लाख 1 मिलियन या कोई बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा होता है ना, तब वो monolithic हट के माइक्रो सर्विसेज पे जाते हैं. monolithic versus microservices. Let me find कि अगर कोई अच्छी सी there's an illustration to explain it better. Atlassian की अच्छी होती है वैसे. General. Yes, I guess this is one thing. Yes. ठीक है. इसमें भी देख लूँगा. या ठीक है, इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ बेटर. ठीक है. अच्छा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे आते हैं. मोनोलिथिक हम किसको कहते हैं? मोनोलिथिक का बेसिक मकसद जो है ना, जो बेसिक टर्म यूज होती है मोनोलिथिक की आसान अल्फाजों में, कि वो सारी चीजें एक जगह जमा हुई हैं. ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला कॉन्सेप्ट है कि सारी की सारी आपकी ये लॉजिक है, सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा आपका जो कोड है, प्रोसेसेस हैं, कंप्लीटली आपकी एक इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक मशीन, एक वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे. ठीक है, जो कि क्लाउड में आपने एक सर्वर खरीदा हुआ है. ठीक है, उसमें आपने एक इंस्टेंस में सारा कोड लॉजिक अपनी डिप्लॉय कर दिया. इसमें ई कॉमर्स की एप्लीकेशन की बात करें तो शॉपिंग कार्ट भी, इन्वेंट्री भी, पेमेंट भी. यहाँ पे एक और मॉड्यूल होगा जो कि यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा होगा. यहाँ पे एक और मॉड्यूल होगा जो कि मे बी आपके आपकी हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इनवॉइसेस, आपके परचेज हिस्ट्री, जिसमें उसे उसकी बेस पे आपको रिकमेंडेशन नहीं देते. कभी भी आपने किसी भी दराज से परचेज की हो, आपने कभी सर्च किया हो दराज पे कुछ आइटम्स, घड़ियां सर्च की होंगी, तो कल जब आप एक हफ्ते बाद भी दराज खोलोगे आपको घड़ियां ज्यादा दिखाएगा. वो ऑब्वियसली आपकी वॉच हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री और कंप्लीटली इनके बेसिस पैरामीटर्स पे आपको फर्दर रिकमेंडेशंस दे रहा होता है. तो कंप्लीटली सारी की सारी जो लॉजिक है वो एक सिंगल इंस्टेंस में होती है और डेटाबेस भी एक ही होगी. ठीक है, ये सब चीजें एक ही तरह से मैनेज होती हैं. रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, क्लाइंट हम ब्राउजर को कहते हैं इन मोस्ट केसेस. ठीक है, और ठीक है, मैं यूजर हूँ, मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज द वे हाउ आई एम एक्सेसिंग द वेब. सो द क्लाइंट वुड बी द ब्राउजर साइड. मैं क्लाइंट हूँ और मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, क्लाइंट ब्राउजर तभी इसको कहेंगे. अच्छा, अब हम आते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में भी ना बहुत ज्यादा डिटेल है, वी कैन कॉल इट, या बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं. बट बेसिक मकसद क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स. बेसिक मकसद क्या है कि आपके पास एक अलग इंस्टेंस है पेमेंट को मैनेज कर रहा है, एक अलग इंस्टेंस है शॉपिंग को मैनेज कर रहा है, एक अलग इंस्टेंस है इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग है, यूजर में भी यूजर मैनेजमेंट के लिए अलग है, इंटरनल स्टाफ के लिए अलग है, कस्टमर सर्विस होती है. अक्सर आपने देखा दराज में कोई भी आपका ऑर्डर का इशू होता है, यू कॉल देम, या आप एक टिकट जनरेट करते हो उनकी चैट पे. आई गेस दराज में ये फीचर है, नहीं भी तो आपने देखा किसी न किसी और एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है. तो ये सारी चीजें यू कैन से
अलग अलग इंस्टेंसेस में पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और इन्होंने कंपाइल किया एक यूआई में, देयर कैन बी आल्सो मल्टीपल इंस्टेंसेस फॉर द यूआई एज वेल। यूआई की हमने जो बात की है दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, ठीक है। और ये सारी बैकएंड के इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, इन सब की डेटाबेस एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। अब हर कंपनी, हर सॉफ्टवेयर या हर टीम सो कैसे इंप्लीमेंट करती है, इट्स अप टू देयर लीड टू डिसाइड, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें अलग से आपके पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिन कंपनीज में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स नहीं होते, उनमें अगर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज वी कैन कॉल इट कि ये मैनेजेरियल या चीफ पोजीशन से पहले के हद तक सबसे जो ज्यादा मोस्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये एक मतलब हायरार्किकल टर्म है, ठीक है। वो डिफाइन करता है मेनली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, नहीं तो फिर प्रिंसिपल, नहीं तो फिर वेदर मैनेजर, सीटीओ, लीड, so on and so forth. They decide. The most senior person in the company decides the structure. Obviously, after much research, much discussion with the team, और फिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। फिजिबिलिटी देखने का क्या कहना चाहिए, क्यों कह रहा हूँ मैं कि देखो, आप एक स्टार्टअप हो फॉर एग्जाम्पल, या आप स्टार्टअप या बड़ी कंपनी भी हो, और आप एक नया प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मेरी एक कंपनी है, मैं ऑलरेडी मेरे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। दराज एक मेरा न्यू प्रोडक्ट है, एक नई चीज है, ठीक है। दराज किसी ने पहले ना कभी सुना है, ना इंडस्ट्री में पहले कभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब दराज जब मैं लॉन्च करने पे आऊंगा, तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है, प्रोडक्ट फ्लॉप भी जा सकता है। ऐसे बहुत ज्यादा एग्जांपल, जैसे फूड पांडा सक्सेसफुल गया था लेकिन क्रेव मार्ट फ्लॉप गया था। उसके क्रेव मार्ट के अलावा पता नहीं कितने फूड डिलीवरी के ऐप्स थे, आई डोंट नो, कुछ 10-15 तो लोगों ने लॉन्च किए थे, ठीक है। अच्छे खासे फेल गया था, फूड पांडा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल गया था। फूड पांडा भी खैर प्रॉफिटेबल जो है वो 2022 या 23 में जाके हुआ है, जबकि कोविड का जमाना जिसमें सब लोगों ने ऑर्डर्स मोस्टली किए थे, मोस्टली यूज किया था, वो था 2018-19 का जमाना। लेकिन एज अ कंपनी जो फूड पांडा की कंपनी है, दे गॉट प्रॉफिटेबल इन 2021 और 2022, एट द एंड ऑफ 2021 और जहाँ स्टार्ट ऑफ 2022 की बात है कि वो कुछ ग्रीन में आए थे, ठीक है, अकाउंट्स की टर्म में। तो अब जैसे फूड पांडा था, लेकिन क्रेव वालों ने जब लॉन्च किया वो दे फेल्ड। अब बात वो है कि आप अगर फेलियर है तो माइक्रो सर्विसेज जो आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करता है, वो बहुत ज्यादा फर्दर एक डेवलपमेंट प्रोसेस को आई वोंट से स्लो करता है, बट जो एंड रिजल्ट है वो आपको देर से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट आर्किटेक्चर में जब काम हो रहा है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है विच इज कंसिडर्ड क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑफ एन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसको मेंटेन करना, उसको चलाना, यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर्स दैट हैव टू सेट इट अप, दैट हैव टू मेंटेन इट, और एक कंप्लीट लंबी लिस्ट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। कि जो जो इसके एक डेवऑप्स आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशन लॉन्च करने में, बनाने में, यू नो बहुत ज्यादा बिट्स एंड पीसेस हैं कंपेयर टू मोनोलिथिक, जिसमें काफी कम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो एक स्टार्टअप सबसे क्या करते हैं कि भले उनका प्लान होता भी है ना, दे नो कि भाई मोनोलिथिक इज नॉट द राइट अप्रोच, वो पुरानी अप्रोच है। अब वी आर लिविंग इन 2024 भी खत्म होने वाले है। तो ये जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है बहुत पुरानी बात हो चुकी है आजकल की इंडस्ट्री के लिए। लेकिन स्टिल, रादर देन इन्वेस्टिंग दैट मच ऑफ मनी, वो क्या करते हैं, वो पहले तो एमवीपी निकालते हैं मोनोलिथिक में, उसके बाद बेस्ड ऑन द रिस्पांस बाय द एमवीपी, ठीक है, वो इन मोस्ट केसेस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर मार्केट में थोड़ा सा भी अच्छा रिस्पांस आता है ना, देन री इन्वेस्टेड, ठीक है। और उससे होता ये है कि रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आपके सक्सेसफुल नहीं भी होता तब भी अगर आपके जहाँ पे 10 करोड़ जाया होने थे, वहां पे आपका 1 करोड़ जाया होगा, ठीक है। तो ये एक चीजों की है कि जो जो फिजिबिलिटी के हिसाब से फिजिबिलिटी एनालिसिस जो किया जाता है, उसके बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं चीजें बेसिकली। लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज का। और ये एग्जाम्पल भी वैसे काफी ज्यादा, अगर आप youtube.com ही खोलोगे ना, तो यूट्यूब में अगर आप अकाउंट सेक्शन पे जाते हो, आप चैनल के सेक्शन पे जाते हो अपने, तो आपको लिंक्स ही देखो आपको अलग मिलेगी, आपको यूआई भी थोड़ा डिफरेंट होता हुआ मिलेगा, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट सर्विस ऑफ दैम, ठीक है। वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश्ड है। हैक द बॉक्स एग्जांपल ले लो, जो कि मोस्टली साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी फेमिलियर। उनकी बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट एप्स हैं, सेपरेट सॉफ्टवेयर्स या सेपरेट एप्लीकेशंस हैं दैट दे आर यूजिंग। उन्होंने सब चीजों को एक जगह पे कंपाइल नहीं किया हुआ। और ये भी डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि इधर शो कराई गई है, ठीक है। ठीक है, तो जेंगो किस पे काम करता है? जेंगो काम करता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और आउट ऑफ द बॉक्स उसने यही प्रोवाइड किया हुआ होता है, एंड उसी पे इट वर्क्स। लेकिन काफी स्केलेबल है, तो इट वर्क्स मतलब काफी अरसे तक चलता है, देखो एक आसान अल्फाजों में बात की जाए तो, ठीक है। अच्छा,
if someone wants to follow along, you can follow along. अगर विंडोज में हो तो आपके लिए पाइथन और पिप होगा, अगर लिनक्स यूजर्स हो तो पाइथन 3 और पिप 3 आपको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट पाइथन एंड पिप इज बाउंडेड टू 2.7 वर्जन ऑफ पाइथन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन है. ओह बस ठीक है. मैं आई एम यूजिंग द वर्जन 3.9.6. पाइथन कैसे सेटअप करना है, बहुत ज्यादा वीडियोस है, अगर आप लोग बोलोगे तो जो टूल सेट है उसको कैसे सेटअप करना है वो आई कैन शेयर दैट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. ऑल्सो काफी सारे मैं इसके बाद इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि काफी लंबा हो गया सेशन, तो इंटरेक्टिव सेशन थोड़ा सा कंसाइज करके देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जो मैंने बात की थी कि प्रोग्रामिंग से हटके ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू. ठीक है, तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको भी ना दिखा दूंगा, क्लेम्स दिखा दूंगा उसका भी. ठीक है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ठीक है. अच्छा, मैंने पिप 3 से ना अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी जेंगो, बट दिस इज द कमांड. इट सेड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी हुआ हुआ है. ठीक है, तो मुझे फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. एंड कमांड याद नहीं रहती मुझे यूजुअली, बट लेट्स सी कि मुझे कितनी याद है. I think this is the command for the starting a new project. ठीक है. और ये कमांड याद रखना या सिंटेक्स नहीं याद होना, this is not nothing something to worry about. ठीक है, क्योंकि इंटरनेट किस चीज के लिए है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आनी चाहिए. एग्जैक्टली क्या लव वर्ड लिखना है, क्या सिंटेक्स है उसका, वो यू हैव द इंटरनेट फॉर दैट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट यूज करना मना है, ऐसा कोई सीन नहीं है. ठीक है. सो यस, एज आई गेस्ड कि मुझे कमांड सही नहीं याद था, बट लेट मी ट्राई दिस. ठीक है. Python 3-m Django start project my project. ये इसका एरर की वजह क्या थी कि जो Django है वो पाथ में नहीं बाइंडेड डायरेक्टली, जो कमांड है ये सिस्टम के पाथ में नहीं है, डायरेक्टली सिस्टम इसको ढूंढ नहीं पाया. ठीक है, लेकिन जब मैंने Python 3-m किया तो उसने Python के अंदर जाके देखा कि भाई ये Django कमांड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसको मिल गया, तो ठीक है उसने चला दिया इसको. ठीक है. Now I have this folder created which is called my project. ठीक है. मैं एक्स्ट्रा फाइल डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं सही से समझा सकूँ. ठीक है. अच्छा, जेंगो का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देखते हैं, जरूरी है कि दिस इज वन मेजर थिंग जो आपको देखना पड़ता है. manage.py आपको कोड समझने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है. manage.py से मकसद क्या होता है कि जेंगो बहुत ज्यादा जो यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है ना, जैसे डेवलपमेंट सर्वर आपने रन करना है ना, तो Python 3 manage.py इफ आई एम इन द करेक्ट डायरेक्टरी. मैं पहले देखता हूँ मैं करेक्ट डायरेक्टरी में हूँ कि नहीं. मैं नहीं हूँ, मैं माय प्रोजेक्ट के बाहर खड़ा हूँ, तो आई मस्ट गो इनसाइड माय प्रोजेक्ट. ठीक है, मैं देखता हूँ अब मुझे manage.py मिलेगा. Python 3 manage.py रन सर्वर, तो ये एक डेवलपमेंट सर्वर रन कर देगा एज यू कैन सी. सो ये इस और भी बहुत सारी इसकी यूटिलिटीज है, हम स्लोली इसको गो थ्रू करेंगे. ठीक है. अच्छा, उसकी बाय डिफॉल्ट पाइथन ने ना, आपने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा होता है उसी नाम से ना उसने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है. ठीक है, जिसने आपके पास जो मेन ऐप है ना, वी कॉल इट एप्स. ठीक है, पाइथन के हर प्रोजेक्ट में एक मेन प्रोजेक्ट होता है, जो कि ये है, ये मेन प्रोजेक्ट है, मेन ऐप है. उसके बाद हम फर्दर एप्स क्रिएट करते हैं. एप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं उसको बताता हूँ आपको. जैसे कि एक ऐप होगी आपकी, आई क्लोज दैट ऑल द टैब्स. ठीक है, एटलासियन की एग्जांपल आपसे खोलते हैं हम लोग. तो एक आपकी हो गई पेमेंट की ऐप, एक आपकी होगी शॉपिंग कार्ट की, एक होगी इन्वेंट्री. नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट. हाउ दिस इज वेरी डिफरेंट कि लारावेल जो काम करती है, जो कन्वेंशनल आपकी टेक्नोलॉजी थी जो काम करती थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान के आई वुड से 80 to 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज तक लारावेल पे काम करते हैं. तो वो एक एमवीसी के आर्किटेक्चर में काम करती है. एमवीसी कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर. एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर. दे वर्क ऑन दैट अप्रोच. और उनके पास क्या स्ट्रक्चर होता है कि उनके पास ये स्ट्रक्चर होता है कि एक फोल्डर होता है कंट्रोलर्स का, एक फोल्डर होता है मॉडल्स का, एक फोल्डर होता है व्यूज का. व्यू में सारे वो फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं, मॉडल्स में सारा वो जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करते हैं, और कंट्रोलर्स में कंट्रोलर इज द मिडिल मैन बेसिकली. Hello, am I audible? Hello. Okay. Disconnection because of the power outage.
चलो सो जस्ट मुझे देखते हैं, मुझे दूसरा सिस्टम भी कनेक्ट करने दें। ठीक है, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहा था कि लेवल में एमवीसी का स्ट्रक्चर यूज होता है, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। सो अब बात की जाए जेंगो की, तो जेंगो में भी कुछ हद तक सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जिसको हम कहते हैं एमवीटी। एमवीटी इज मॉडल, व्यू एंड देन टेम्पलेट्स, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा बहुत वही कॉन्सेप्ट, इसमें एक डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर मोनोलिथिक, मॉड्यूलर एमवीसी भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर ना एप्स क्रिएट होता है। मैं अभी वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐप हो सकता है, एक पेमेंट का ऐप हो सकता है। मतलब आप देख रहे हो इसमें नॉर्मल मोनोलिथिक एप्लीकेशन होने के बावजूद भी टुकड़े किए हुए एप्लीकेशन के, पेमेंट वाली लॉजिक अलग फोल्डर में लिखी जा रही है, अलग ऐप में लिखी जाएगी, वी कॉल इट, ठीक है। पाइथन की इसकी जेंगो की वर्डिंग्स में वी कॉल इट एन ऐप। सो अगेन manage.py एज वी डिस्कस के ये यूज होता है सारी यूटिलिटीज के लिए। आज को मैं कह देता हूँ माई ऐप ही कह लेते हैं, चलो। जब मैंने इसको किया तो इसने माई ऐप का फोल्डर बना लिया, उसमें जो भी बेसिक टेम्पलेट, जो बेसिक कोड है, बेस कोड है, वो इसने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब पाइथन में ये होता है कि जेंगो में ये होता है, सॉरी मैं पता नहीं क्यों बाबा पाइथन बोल रहा हूँ। तो इसमें जब माय प्रोजेक्ट को आप देखो ना, थोड़ा सा इसको रिव्यू करो। पाइथन में हर फोल्डर, ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, जेंगो का नहीं है। तो इसमें फोल्डर के अंदर का अंडरस्कोर इनिट का फाइल है ना, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ मॉड्यूल, ठीक है। ये इंपोर्ट कराया जा सकता है कहीं पे भी, ठीक है। मतलब एक दिस इज व्हाट डिफाइंस कि भाई इन सब फोल्डर, ये इन सब फाइल्स को कंपाइल करता है और इस माय प्रोजेक्ट की नेम स्पेस में लाता है। किसी ने सी पे काम किया तो ही नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस। ये डिफॉल्ट फाइल होती है, दिस इज फॉर सर्वर सेटअप के लिए काम आती है ये। जो सेटिंग्स फाइल होती है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी सीक्रेट की है, यू मस्ट कीप इट सेफ। बेस डायरेक्टरी, इसको चेंजने की कोई जरूरत नहीं है। अलाउड होस्ट में ये होता है कि अगर आप किसी mydomain.com पे डिप्लॉय करते हो तो इट वोंट अलाउ इट अंटिल दैट डोमेन इज एडेड हियर, ठीक है। इंस्टॉल एप्स, अच्छा अब इंस्टॉल एप्स में आपको क्या करना होता है कि इंस्टॉल एप्स में अगर आपने कोई प्लगइन्स, ठीक है, पाइथन जेंगो है उसको एक्सटेंड किया हुआ है काफी लोगों ने ना, प्लगइन्स बनाई हुई है। अगर आपने कोई वो इंस्टॉल की है तो यू मस्ट रजिस्टर इट हियर। रजिस्टर का मतलब जेंगो बताना तो है ना कि भाई ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको यूज करो। जैसे कि एक ऐप भी मेरी एक प्लगइन ही है, एड ऑन है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने माई ऐप लिख देना है इधर। जब माई ऐप लिख देना है, उसने खुद ही इस इस फोल्डर को प्रोसेस करना है उसने, ठीक है। उसको अब वो ढूंढेगा कि भाई माई ऐप इधर कहाँ पे है, उसको माई ऐप मिलेगा तो देन इट विल प्रोसेस इट, ठीक है। वरना वो अगर मैं यहाँ माई ऐप नहीं लिखा तो उसने माई ऐप ही नहीं ढूंढना था, ठीक है। तो वो काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन दिस फोल्डर सेटिंग्स के बाद हमारा मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि हमारे पास मिडिलवेयर हो सकती है एक स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन की। अगर मैं बात करूं कि भाई सिर्फ उन यूजर्स को एक्सेस दो, ठीक है, या सिर्फ उन यूजर्स को एक्सेस दो जिसकी ईमेल @isbstudent.com/.edu.pk से एंड होती हो। सो दिस इज, और ये मुझे हर रिक्वेस्ट पे लगानी है, तो मैं एक मिडिलवेयर बना सकता हूँ। मैं हर अपने व्यू में जाके, हर अपने रिक्वेस्ट में जाके मैं इसको लिखूं कि भाई अच्छा जो यूजर है इसको है रिक्वेस्ट एक्सेस जो @isb.com/edu.pk का एक्सेस है, तो ठीक है इसको जाने दो, वरना इसको यहाँ पे एरर रेज कर दो। तो उससे बेहतर है जब हर हर उसमें होना है, हर रिक्वेस्ट में होना है, तो आई कैन ऐड इट एज अ मिडिलवेयर। अच्छा, मिडिलवेयर की सीक्वेंस मैटर करती है, ठीक है। ये एक चीज है रखने वाली है, क्योंकि पहले कौन सी चलती है, फिर दूसरी कौन सी चलती है, तीसरी कौन सी चलती है। रूट यूआरएल कॉन्फ़िग माय प्रोजेक्ट डॉट यूआरएल, ये रूट यूआरएल कॉन्फ़िग है, इसको भी हम देख लेते हैं। टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट होती है, इसको भी हम देख लेंगे। एंड डब्ल्यूएस डेटाबेस की कॉन्फ़िग है बाय डिफॉल्ट। जेंगो जो है वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस रन करता है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, इधर आप अपने क्रेडेंशियल्स दे सकते हो फॉर योर मायस्क्यूएल डेटाबेस, फॉर योर मोंगोडीबी डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। पासवर्ड वैलिडेटर्स हैं कि भाई मिनिमल लेंथ वैलिडेट करो, कॉमन मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, ऑल आर द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स बेसिकली। डब्ल्यूएस जाए भी ये भी सर्वर की थिंग है, इसको भी ज़्यादा डीप देखने की जरूरत नहीं है। यूआरएल्स की बात करते हैं। यूआरएल्स की फाइल होती है, मेन फाइल होती है, इसमें वो आप सारे यूआरएल्स डिफाइन होते हैं, सारे जो ना एक कह लो कि रिक्वेस्ट जो आ रही है ना, वो इधर चेक होती है कि वो इन यूआरएल्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एडमिन का यूआरएल है तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इधर राउटिंग हो रही है ये सारी की सारी, ठीक है।
एंड देन मैं माई ऐप में आता, माई ऐप से क्या क्रिएट किया, माई ऐप से व्यूज का फोल्डर क्रिएट किया, जैसे मैंने बात की कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्यू जेंगो में व्यू कंट्रोलर्स को कहते हैं, मतलब इसमें लॉजिक लिखी जाती है बेसिकली, ठीक है। तभी इसको एमवीसी नहीं एमवीटी कहते हैं, कि मॉडल होता है, फिर व्यू होता है आपके पास, और फिर टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट इज लाइक HTML फाइल्स, या कोई भी रिएक्ट पे काम कर रहे हो रिएक्ट की फाइल्स हो सकती हैं। टेस्ट केसेस होती हैं, यूनिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, जो कि पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं देखा फॉलो करते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। लेकिन बाहर कंपनीज बहुत सीरियसली लेती हैं इसको, कि डेवलपर जो भी काम करता है उसका यूनिट टेस्ट केसेस साथ साथ लिखता है, और जब भी वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है वो सारे के सारे टेस्ट रन होते हैं, ताकि भाई जो फॉर एग्जांपल ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, मतलब दिस इज मतलब एक कह लो कि मजाक भी लगे, बट ये सच है कि मैंने, अगर मेरे पास ये वेबसाइट है, मैंने अपने डेवलपर को बोला है, ठीक है, कन्वेंशन, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, कन्वेंशन रेगुलर बेसिस, ये स्टोरी भी नहीं, ये रेगुलर ये रोजमर्रा की कहानी है, ठीक है, इन इन सिंपलर वर्ड्स, कि मैं अब यहाँ पे हमें देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये ना यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है वेयर, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, दिस शुड हैव बीन समथिंग एल्स। मैंने डेवलपर को बोला कि भैया टेक्स्ट सही कर दो, उसने टेक्स्ट सही कर देना है, लेकिन वो करते हुए उसने मे भी कुछ और गलती कर देनी, जिससे क्या पता ये भी ना चल रहा हो, क्या पता पूरी साइट ना डाउन हो जाए, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन कॉमन बात है, ये मैं भी कह रहा हूँ रोजमर्रा की कहानी है, कि ये एक ये दिस इज द क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोवाइड इन पाकिस्तान बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए बाहर का स्टैंडर्ड क्या है, इस मसले को हल करने के लिए बाहर का स्टैंडर्ड ये है कि दे राइट टेस्ट केसेस राइट करते हैं, ताकि ऐसे मसले ना आए, जो चलती हुई चीज़ है वो चलना चलना बंद ना हो। मॉडल, यहाँ पे मॉडल डिफाइन करते हो आप, ये ऐप फाइल है, ये भी कॉन्फ़िग फाइल होती है, admin.py, इस फाइल पे भी हम आएंगे। तो इसका जल्दी जल्दी हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, एक मैं डेमो देता हूँ, एंड देन हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं मॉडल से, हम एक मॉडल बनाते हैं अपना, ठीक है। हम अगर थोड़ी बहुत अगर ई कॉमर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है आइटम का, ठीक है। एंड दिस ये थोड़ा सिंटैक्स है, ये थोड़ा बहुत कह लें कि यू गेट टू नो दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम जब आप काम करते हो। मुझे अब इसमें देखो मॉडल्स का ये टर्म नहीं मिल रहा है इधर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जेंगो का .db import मॉडल्स, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जेंगो के मॉड्यूल है, उसके अंदर एक डीबी का उनके पास एक सब मॉड्यूल है, जिसके अंदर मॉडल्स के एक क्लास मौजूद है, और एक क्लास में नहीं, ये भी एक ऐसा मॉड्यूल है उसका भी, जिसके अंदर एक उस सब मॉड्यूल के अंदर एक मॉडल की क्लास मौजूद है। अब मॉडल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम उसको इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट करके हमने एक और क्लास बनाई है अपनी आइटम की, ठीक है। और मैं उसको फॉर एग्जाम्पल आइटम को नेम दे सकता हूँ, ठीक है, जो कि एक करेक्टर फील्ड होगी। ऐसे ही सब बहुत ज़्यादा फील्ड टाइप्स होती हैं, अगर आपने कभी एसक्यूएल पढ़ी हो या कोई भी डेटाबेस पढ़ी हो, तो यू वुड नो कि देयर आर मल्टीपल डाटा टाइप्स। ये कह लो जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, इंटीजर वेरिएबल होता है, ऐसे ये ना फर्दर टाइप्स होती हैं। और ये मतलब ये मैप भी होती हैं, करेक्टर फील्ड है वो एसक्यूएल की जो एनवार्स उससे मैप होता है। और डिस्क्रिप्शन है, हम ऐड कर सकते हैं मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड आई वुड हैव, ये होगी, ठीक है। और एक प्राइस भी होगी इनकी, कह लो मॉडल्स डॉट इंटीजर चॉइसेस, नहीं इंटीजर फील्ड, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट पा सकते हैं कि भाई ये नलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये प्रिसिजन कितनी है, बट सिंपल एग्जांपल रहते हैं। अच्छा, जेंगो का एक और, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट ये एक अप्रोच है जो हम काफी बेसिक कंपनी भी फॉलो करती हैं, विच इज के हर मॉडल के अंदर आपने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया होता है, जिसमें आपने ये अंडरस्कोर एसटीआर की डिफाइन करनी है। अब पाइथन में जो अंडरस्कोर एसटीआर होता है ना, वो क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि अगर इसको स्ट्रिंगिफाई किया जाए इसके इंस्टेंस को, इस क्लास के इंस्टेंस को, तो क्या रिटर्न करेगा। तो हमने नेम कहा है, ठीक है। आईडी की फील्ड ये खुद ही ऐड कर देता है मॉडल में, तो हमें आईडी की फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन, आपने मॉडल बनाया है, तो अब इसको डेटाबेस में भी तो क्रिएट करना है, ठीक है। तो पाइथन इसको कैसे डील करता है, जेंगो इसको कैसे डील करता है, सॉरी, जेंगो कैसे डील करता है कि माइग्रेशन चला करनी पड़ती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जा रहा था मैंने सर्वर रन किया, 18 अनप्लान्ड माइग्रेशंस। अनप्लान्ड मतलब जो डिफॉल्ट माइग्रेशन होती है, इसमें ऑथेंटिकेशन किया जाती है, बहुत ज्यादा जेंगो अपनी मैनेजमेंट के लिए यूज करता है, ठीक है। इसमें आप देखो एडमिन की, ऑथ की, कंटेंट टाइप्स की सारी बता रहा है कि ये सारी मिसिंग है, ठीक है। बट अब आपकी माइग्रेशन जो होंगी, अगर आपने वो कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो यू मस्ट रन पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि आई हैव क्रिएट मॉडल आइटम की एक माइग्रेशन क्रिएट कर दी, और आप देख भी सकते हो इधर माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर जाओ माई ऐप के, तो आपको एक माइग्रेशन नजर आ रही है। इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, माइग्रेशन डॉट क्रिएट मॉडल, आइटम के नाम का और फील्ड जो होंगी उसकी, और आईडी देखो इसने खुद ही ऐड कर दिया, एज यू कैन सी आईडी खुद ही ऐड कर दिया इसने। अच्छा, अब ये मेक माइग्रेशन तो हो गई, अब मैं माइग्रेट करूंगा, मतलब ये डेटाबेस पे अप्लाई करूंगा, ठीक है।
तो मैं इसने सारी सारी अप्लाई कर दी। जैसे हमने देखा कि 18 पहले की भी थी जो कि बिल्ट इन थी, वो आ गई हैं कि जेंगो काफी ऑथेंटिकेशन भी खुद प्रोवाइड करता है, एक एडमिन पैनल भी खुद प्रोवाइड करता है। ये जेंगो की एक बहुत ही एक अच्छी बात है, वी कैन कॉल इट, ठीक है, कि वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा होता है एडमिन पैनल। और अभी हमने मॉडल क्रिएट किया था, वो कहाँ गया? ओह, मैंने गलत फाइल में क्रिएट कर दिया था। मैं बैड, तभी मॉडल्स का ये इसमें नहीं मौजूद था, लेकिन खैर हमने इधर से इंपोर्ट किया था तो इट वर्कड, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज पर दी स्टैंडर्ड मॉडल्स की फाइल में आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। ओके, सो दैट्स डन, नाउ आई कैन रन माय सर्वर अगेन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एडमिन पैनल होता है इसका एक, तो एडमिन पैनल में ना आपको ऑब्वियसली इट डजंट ऑटोमेटिकली नो कि उसने क्या क्या दिखाना है वहाँ पे, कैसे दिखाना है। एडमिन पैनल कॉन्फ़िगर भी कैसे, एक लंबी लिस्ट है जो कॉन्फ़िगरेशंस की भी। लेकिन अगर आपको मॉडल आइटम का चाहिए एक सुपर एडमिन पैनल में, सुपर एडमिन को क्या एक्सेस चाहिए होता है? एडिट, अपडेट, डिलीट, सारे CRUD ऑपरेशन चाहिए होते हैं हमेशा। तो एडमिन में आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कैसे रजिस्टर करोगे आप एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, इसके 2-3 और भी तरीके होते हैं। @registry का भी कमांड एक डेकोरेटर होता है, लेकिन दिस इज मोर कॉमन अप्रोच, एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन, ठीक है। तो अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, जो कि यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस तो मुझे दे रही है काफी, ठीक है, लंबी लिस्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स। इंपोर्टिंग का पाइथन का सिंटैक्स होता है फ्रॉम डॉट मॉडल्स का मतलब एक करंट डायरेक्टरी में से जो मॉडल्स की फाइल है उसमें से आइटम को इंपोर्ट कर दो। सो आई हैव रजिस्टर्ड जस्ट दिस दिस मॉडल ऑफ माइन जो कि हमने अभी भी क्रिएट किया था, ठीक है। और मैं अब इस एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ। अब आपने ये डिफॉल्ट टेम्पलेट अभी भी, क्योंकि मैंने कोई भी HTML फ्रंट एंड कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। जब जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर एडमिन पैनल बाय डिफॉल्ट होता है, तो आई कैन सी दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पासवर्ड मेरे पास नहीं है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं वापसी इधर जाऊंगा। अगेन हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, manage.py को यूज कर रहे हैं, python 3 manage.py। क्रिएट सुपर यूजर कमांड होता है हमारे पास, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। ऐसे मैं एडमिन का नाम का यूजर क्रिएट करता हूँ, admin@mail.com, कोई भी डमी ईमेल, पासवर्ड मैं एडमिन दूंगा, फिर एडमिन दूंगा। कह रहा है कि सिक्योर नहीं है, बट bypass validation, ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन दैट दे गिव। सर्वर मेरा अभी भी रनिंग में है, मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन लिख के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और एज यू कैन सी ये मेरे पास एडमिन पैनल में लॉगिन कर दिया है, ठीक है। और मेरे पास यूजर्स भी शो हो रहे हैं, मैं यूजर्स में जाऊंगा तो यूजर्स मेरे पास एडमिन ऑलरेडी शो हो रहा है। मैं नया यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रख सकता हूँ मैं हसीब। इसका पासवर्ड मैं भी रख सकता हूँ समथिंग, लेकिन इसमें मुझे बायपास नहीं करने देगा वैलिडेशन, तो आई वुड मेक समथिंग गुड, ठीक है, सेव। एंड मैंने पासवर्ड मैच नहीं कराया, नाइस। ठीक है। अच्छा, अब ये यूजर क्रिएट हुआ तो अब देखो उस वक्त उससे यूजर नेम पासवर्ड मांगा, लेकिन ईमेल, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, इसके परमिशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। ये भी एक अलग टॉपिक है, पूरी ऑथेंटिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और जेंगो की ऑथेंटिकेशन को समझना, इट्स अ डेडिकेटेड वर्कशॉप व्हिच वी कैन सम टाइम अरेंज एज वेल, ठीक है। और लास्ट लॉगिन और काफी स्टैट्स आ रहे हैं आपके पास, एक यूजर के ग्रुप से हमारे पास में वही परमिशंस किसी ग्रुप के एसोसिएट कर रही होती हैं, तो दैट आल्सो कैन बी डन हियर। आइटम्स, जैसे हमने अभी मॉडल क्रिएट किया अपना, तो आइटम्स का हमारे पास मॉडल आ रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक डाल सकता हूँ कार कार डिस्क्रिप्शन प्राइस, लेट्स से 10,000 फॉर एग्जांपल। सेव एंड ऐड अदर कर दिया मैंने, वॉच वॉच 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने मॉडल्स ऐड कर दिए हैं, मेरे दिख रहे हैं। कार में जाके मैं कार को अपडेट भी कर सकता हूँ, सेव। एंड इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेट की, तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेटेड है। मैं इसकी अगर नेम अपडेट करता हूँ तब भी नेम अपडेटेड है इसका, ठीक है। तो एज यू कैन सी के दैट कैन बी डन। अब ये मॉडल्स की हद तक की बात थी, ठीक है। और हम अब आते हैं व्यूज पे। अब व्यूज पे अगर हम आए तो आई कैन हमेशा हमारे पास जब व्यू की बात आती है, पहला बेसिक व्यू कौन सा होता है? इंडेक्स का व्यू होता है। तो मैं इंडेक्स का व्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिक्वेस्ट को हम एज अ पैरामीटर देते हैं। इसमें रिक्वेस्ट में क्या आ रहा होता है कि जो भी यूजर की तरफ से, जो भी क्लाइंट की तरफ से आपके पास डाटा आ रही होती है, वो रिक्वेस्ट में आ रही होती है कि व्हाट, कि उसने जब ये इस लिंक को क्लिक किया है तो उसने क्या क्या पैरामीटर साथ पास किए हैं, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इट कैन बी हेडर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे आइटम्स फेच कर रहा हूँ। मैं ऑल मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ कि भाई सिर्फ एक्टिव वाले आ जाएं या सिर्फ जिनका, मैं बहुत ज्यादा चीजें कर सकता हूँ कि अगर हमने कैटेगरी रखी होती है तो सिर्फ कार कैटेगरी के आ जाते हैं या किसी व्हीकल्स कैटेगरी के आ जाते हैं।
तो मैं वो भी रख सकता था। तो अगेन मैं इंपोर्ट करूंगा इसे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ठीक है, इंपोर्ट आइटम, मेरे पास सारे के सारे आइटम्स आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि देखिए इसने बाय डिफॉल्ट वेंडर का एक रिक्वेस्ट हमें दी हुई है, बाय डिफॉल्ट इसने एक मैं जैसे HTTP रिस्पॉन्स भी वैसे रिटर्न कर सकता हूँ, दैट इज वन ऑप्शन एज वेल, कि अगर मैं API बेस या रेस्ट बेस एंड पॉइंट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। लेकिन हम लोग अभी सिंपल रखते हैं, हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा index.html, अभी क्रिएट की नहीं है मैंने, हम लोग करेंगे, ठीक है। आइटम्स और दे दिए मैंने आइटम्स, ठीक है। तो हुआ ये है कि यहाँ पे मैंने रेंडर की रिक्वेस्ट कॉल कर रहा हूँ, इसमें ये बाय डिफॉल्ट देना होता है, ये मेरी टेम्पलेट फाइल का नाम है, किस फाइल को मैं रेंडर कराना चाह रहा हूँ, कौन सी फाइल मैं चलाना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब होता है कि कौन सी चीज, ये जो आइटम्स के नाम से ये वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी वो सारी सारी इस फाइल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो मैं इस फाइल में ये चीज यूज कर सकता हूँ बेसिकली, उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा माय ऐप के अंदर ही, जिसका मैं नाम दे दूंगा टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैं एक index.html के नाम से मैं टेम्पलेट क्रिएट कर रहा हूँ, index.html, ठीक है। बेसिक हमारे पास डॉक टाइप आ गई, इसका कोई काफी टाइम हो गया वैसे मुझे फ्रंट एंड पे काम किए हुए, बट ना इन VS यू हैव सम शॉर्टकट्स एज वेल, तो ये बॉल अपडेट जनरेट करने के लिए, लेकिन चलो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, दैट इज फाइन एज वेल। माय आइटम्स पेज, ठीक है, मैंने इसको टाइटल दिया है, और हेड हो गया, तो अब हमें बॉडी बनानी है, ठीक है, ठीक है। एंड मैं एक चले हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, माय आइटम्स, या आइटम्स लिस्ट कर लेते हैं, आइटम लिस्ट, ठीक है। और इसके नीचे मैं टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन आई हैव। मैं UL भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स, दैट इज मोर इजियर फॉर नाउ, शॉर्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ये HTML के टैग्स नहीं है, दीज आर जेंगो के टैग्स है ये, ठीक है। ये मैंने 2 जेंगो टैग्स लिखे हैं, मैंने क्यों लिखे हैं इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने देते हैं, ठीक है। आई हैव I will have the name here and let's the description, price as well, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपने जैसे देखा कि यहाँ पे हमने आइटम्स पास किए थे यहाँ पे, सो आई हैव आइटम्स हियर। अब आइटम्स एक लिस्ट है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑल किया तो ये एक लिस्ट आएगी, लिस्ट रिटर्न करता है। तो फॉर आइटम इन आइटम्स, ये एक बेसिक पाइथन का फॉर लूप है, ठीक है, फॉर ईच लूप या फॉर लूप कह ले। एंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फॉर, तो यहाँ पे एंड फॉर भी करना है, टैग, इसको टेम्पलेट टैग कहते हैं जेंगो के, ठीक है। अब मुझे इस स्कोप के अंदर ना, ठीक है, स्कोप के अंदर मुझे आइटम का वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर आइटम कर दिया, तो जैसे फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं यहाँ पे आइटम आ रहा है, अब आइटम में जाऊं, मेरे पास क्या है, ये आइटम था, सेटिंग मेरे पास नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है। तो व्हाट आई कैन डू आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट प्राइस, तो मुझे ये दोनों चीजें यहाँ पे रेंडर होके मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने व्यू बना दिया, हमने इंडेक्स बना दिया, लेकिन हमने इसको किसी के साथ बाइंड नहीं किया, किसी पाथ के साथ बाइंड नहीं किया। उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे, we will create one file which is called urls.py, ठीक है। एंड इसका कुछ कोड, एक बेस कोड होता है, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड है कि आपको URL पैटर्न्स, इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, URL पैटर्न्स के सारे पैटर्न्स होंगे, और उसको डिफाइन करने के लिए एज फार एज आई रिमेंबर पाथ यूज होता है, एंड पाथ आई मस्ट इंपोर्ट, ठीक है। कुछ चीजें यू हैव टू के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको वहीं से लानी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं while I'm at it, मैं व्यूज ही अपने इंपोर्ट कर दूंगा, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। अब मेरे पैटर्न है, तो मैं एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ विच इज एम्प्टी पैटर्न है, या मैं इसको नाम दे भी सकता हूँ स्लैश, मैं चले 2 क्रिएट करते हैं, एक क्रिएट करने के बाद एक और क्रिएट करते हैं, व्यूज डॉट इंडेक्स नेम इक्वल्स टू इंडेक्स। नेम देना इट्स ऑप्शनल, बट ये एक स्टैंडर्ड है जो कि बेसिक जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन तक इसको वो करती है, हाईलाइट करती है, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है कि जो व्यूज हमने एक फोल्डर फाइल थी जिसके अंदर हमने इंडेक्स क्रिएट किया था, तो वो यहाँ पे बाइंड हो रहा है इस पाथ के साथ, इस नाम के साथ। और मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आइटम लिस्ट, ठीक है। तो ये मैं 2 एग्जांपल्स, सेम पाथ है, लेकिन जस्ट टू बताने के लिए कि ये एम्प्टी और ये इसमें क्या फर्क होता है, इसको मैं से बताने के लिए मैंने 2 क्रिएट किए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की कि
अगर आप सेटिंग्स में देखोगे ना, सेटिंग्स में मैं अगर यूआरएल सर्च करूँ ना, yes, root URL config, which is myproject.url. So myproject.urls is the root URL config. तो मतलब उसे यहीं से पिक करना है जो भी उसने पिक करना है। लेकिन हमने क्या है कि हमने अब इधर वाले ही पिक कराना है URL जो मैंने उसके अंदर क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं करूंगा इसको आइटम्स, ठीक है, और मैं इसको ले जाऊंगा अपनी जो हमारे पास जो myapp.url से। तो मैं इंक्लूड क्या, इसमें एक हेल्पर होता है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ myapp.urls एंड यस इट हैज टू बी इंपोर्टेड अगेन, तो इंक्लूड कर दूंगा, तो अब ये एरर नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड आई हैव दिस के जिसमें आइटम्स स्लैश इंक्लूड myapp giving error then to be अच्छा हाँ देखो, अब इसने कहा कि इसने ऐसे एरर प्लेस किया कि एरर एरर पढ़ना है, इंक्लूडेड यूआरएल कॉन्फिग माय URL, ठीक है, फाल्ट बार बताया डज नॉट हैव एनी पैटर्न्स, रीड पैटर्न्स विद पैटर्न द इशू इज प्रॉब्ली कॉज्ड बाय सब। ये क्या है कि यूआरएल पैटर्न्स इसके अंदर है, तो फिर कोई और ना, ये मैं देखता कर रहा, तो वो मैं टाइप की यूआरएल्स लिखा था जबकि इट पैटर्न, तो इस वजह से अब ये इशू रिजॉल्व हो गया। सो नाउ व्हाट द थिंग शुड बी कि हम रूट के बाद आपका डोमेन जो है उसके बाद स्लैश आइटम्स, ओके, आइटम्स के बाद मैं जाऊंगा माई ऐप डॉट यूआरएल्स में, उधर मुझे एक इंडेक्स मिलेगा स्लैश आइटम्स पे भी, और उसके बाद आइटम लिस्ट में भी मुझे मिलना चाहिए। ये दो यूआरएल्स हमने क्रिएट किए हैं बेसिकली। तो मुझे रूट पे कुछ भी नहीं मिला कि रूट पे हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया। स्लैश आइटम्स पे जाता हूँ तो मुझे मिलता है जिसमें आइटम लिस्ट आ रही है, एक आ रही है कार, एक आ रही है वॉच, और दूसरा राउट जो मैंने क्रिएट किया था वो था आइटम लिस्ट का, उसमें भी सेम हमने सेम टेम्पलेट इंजेक्ट की थी, यहाँ पे इंजेक्ट किया, इधर भी इंडेक्स इंजेक्ट किया। कुछ डिफरेंट करना होता तो फिर डिफरेंट हम इंजेक्ट थे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि इंडेक्स 2, दिस इज इंडेक्स 2, मैं फिल्टर कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे के साथ साथ मैं जो हमारे पास आइटम्स हैं मैं कहता हूँ वॉच, नाम वॉच है, जस्ट ब्रिंग दैट, ठीक है। ये इंडेक्स 2 जो है ये मैं बाइंड कर देता हूँ दूसरे तो ये सिर्फ वॉच वॉच दिखाएगा। तो देखें जैसे वॉच आ रहा है तो दिस इज फिल्ट्रेशन डन, फिल्ट्रेशन भी हो गई। सो एनी क्वेश्चन सो फार, हमने काफी हद तक कुछ चीजें कवर कर ली हैं जेंगो के रिलेटेड। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, कोई चीज ना समझ आई हो या कोई चीज ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी वेल। हाँ फहद, अभी ऑप्शन से मेरे पास अगर आप देखो भी और टाइम हमारे पास ज्यादा होता तो हम जेएस के एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पहले कवर करते। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है वो काफी ज्यादा सिंपल मुकाबले में, उसमें कम चीज है, सिंपल नहीं है, तो कि मकसद दोनों का सेम है। दोनों में उसमें भी आपने राउट डिफाइन करना है, इसमें भी राउट डिफाइन करना है, उसमें भी आपको टेम्प व्यू दिखाना है, मतलब एंड रिजल्ट है दोनों का सेम चाहिए हमें। बस ये है कि तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है दोनों का, उसका थोड़ा सिंपल तरीका है, इसका थोड़ा सा जैसे, तभी मैंने पहले कहा कि जेंगो का लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, तभी पाकिस्तान में आपको बहुत कम डेवलपर्स, लेकिन स्टीप मैं क्यों कहता हूँ, स्टीप मैं इस वजह से कहता हूँ कि जो इंटरनेट पे रिसर्चेज हैं वो कहती हैं कि स्टीप है, बंदा एक दिन में भी कर सकता है। एक्सपीरियंस इल्ला है कि वो कोविड का जमाना था, वो एक अलग बात है। कोई अच्छी रिसोर्सेज, यस, ठीक है, हम आते हैं, लेट मी, मैं ज्यादा लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ऐसा करता हूँ मैं, बिकॉज एक तो मैंने खुद एक बंदे से जिससे मैंने मैंने सीखा था कोड विद मॉश, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, जो 2020 के स्टार्ट में द पाथ आई टुक go in his videos, अच्छा ऐसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तब इसका नाम शायद कोड विद मॉश था, प्रोग्रामिंग विद मॉश है, पाइथन क्रैश कोर्स समथिंग, 6 घंटों का कोर्स था ये कोई, ठीक है, उस जमाने के 5 years ago एग्जैक्टली दिस वन, ठीक है, ये एग्जैक्ट कोर्स है, उसका काफी नया नया आया था, ठीक है। ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कौन सा अच्छा टीचर है क्या है, मैंने इससे सीखा था, जो सीधी बात है। और
इसकी अगर आप जो वो है ना, आई डोंट नॉट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, टेबल ऑफ कंटेंट कह रहे हैं इसको। तो इसमें देखो पाइथन पढ़ाता है 3-4 घंटों तक, ठीक है? 3-4 घंटों में यू हैव कंप्लीट पाइथन, यू हैव लर्न पाइथन, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद ये क्या करता है कि 4 घंटों के बाद ना ऑटोमेशन विद पाइथन, जिसमें आई गेस सेलेनियम दिखाया था इसने थोड़ा बहुत, व्हिच इज आल्सो रियली हेल्पफुल टूल, और इसकी डिमांड भी है, ठीक है? और मजे का भी है, लाइक आप कोई भी इसके फील्ड यूजुअली आप देखते हैं सिर्फ इसमें, इसको देख लें, अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, साथ-साथ देखें तो एंजॉय। मशीन लर्निंग का मैंने स्किप किया था, आई डायरेक्टली वेंट टू दिस बिल्डिंग वेबसाइट विद जेंगो, ये इसका 1 घंटे का तकरीबन इसने इसका सेशन दिया था, ठीक है? सो दिस इज अ गुड क्रैश कोर्स ऑन जेंगो, एंड देयर इज अदर गाय व्हिच इज लाइक कोड विद हैरी जेंगो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने कुछ आई गेस 20-30% देखी थी जेंगो की, जो 2 वीडियोस किया, बट मैंने कुछ 20-30% देखी थी, यू नो, फास्ट पेस करके। एंड इसमें जो ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बीच में बनवाता है, आई जस्ट यू नो वॉच दैट, और इससे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और इसमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगे थे, जो हकीकत बात है। बट कोविड का जमाना था, तो यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, एंड यू नो यू गाइस आल्सो बीइंग इन द टेक इंडस्ट्री, आप तो यू नो, अगर आपके लिए ये मसला नहीं होना चाहिए कि 8-10 घंटे आप सिर्फ लैपटॉप पे बैठ रहे हो, बिकॉज बाद में जॉब में भी यही करना है कि आपने 8 घंटे लैपटॉप के सामने बैठना है। तो व्हाई नॉट डू इट, यू नो, व्हेन लर्निंग, तो काफी फास्ट पेस हो जाएगा आपका लर्निंग, जो एक पार्ट है या फेज है। उसके अलावा जेंगो की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इट्स मतलब मैंने किसी और फ्रेमवर्क की इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी। इन्होंने काफी ज्यादा रीस्ट्रक्चर किया अभी, वैसे जब मैंने एक्सप्लोर किया था तब इसका काफी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर था, डिजाइन भी डिफरेंट थी, अब ब्लैक थीम भी नहीं थी तब, जो सीधी बात है। लेकिन अभी इन्होंने काफी रिस्ट्रक्चर किया, लेकिन स्टिल जब कंटेंट थोड़ा बहुत रिव्यू किया था मैंने 1-2 दिन पहले, तो इट्स द कंटेंट इज स्टिल द सेम, जस्ट डिजाइन थोड़ी उन्होंने इंप्रूव की है या डिफरेंट की है। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत 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 ज्यादा वेल रिटन है, इट्स रियली नाइस। और दूसरी एक मजे की बात बताऊं कि चैट जीपीटी जो है वो बहुत अच्छा समझता है जेंगो को। उसकी वजह क्या है कि जेंगो का हर चीज का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। जेंगो के बहुत ज्यादा रूल्स है जो कि हार्ड कोटेड रूल्स हैं, जैसे डीआरएफ, डीआरवाई, ड्राई प्रिंसिपल पे काम करता है जेंगो, व्हिच इज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। डी फॉर डू नॉट, आर फॉर रिपीट, वाई फॉर योरसेल्फ। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, और जो इसके सारे प्रिंसिपल है, सारी मेथोडोलॉजी है, सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो यही बात है कि जीपीटी भी है, जो एआईज हैं वो भी, जो इतनी अच्छी इंटरनेट रिसोर्स होंगी उस पर उतने अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है? एक्सप्रेस और इनके जो फ्रेमवर्क्स है ना, ये हर बंदा, हर प्रोजेक्ट, हर कंपनी अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है। जेंगो इस चीज को इतना ज्यादा अलाउ नहीं करता, कहता है जो मेरा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करो, ठीक है? दैट इज वाई इट्स स्केलेबल, इजीली आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? उसमें आपको स्केलेबल बनाना पड़ता है, इसका है। तो खैर जीपीटी और ये सारे जो एआई टूल्स में, दे आल्सो यू नो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ गुड इनसाइट। कभी भी आपको आता बताओगे वो आप पॉइंट कर कंपेयर, तो ये बात है। yes, इसको कोडिंग और इसको थोड़ा रैप अप करते हैं, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। एंड जो इस्लामाबाद है उनके लिए तो बारिश भी हो रही है, ठीक है? तो जस्ट 1-2 टूल्स को मैं रिव्यू कराऊंगा अभी, एंड देन वी विल कॉल इट अ डे, ठीक है? और उसके लिए ये है कि आप जेंगो को देख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, डू नॉट स्टॉप देयर, ठीक? आप जेंगो पिक करते हो, आप जब मर्न स्टैक भी पिक करते हो, ठीक है, जिसके लिए हम आ रहा है बाय द वे। इफ अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन दैट कोर्स, so we will continue it, वरना अगर हमें यू नो पब्लिक नहीं मिली, then we will you know stop that, and maybe we will try Python Django course as well in the coming month, नहीं तो उससे अगले मंथ तो Django course होगा ही होगा इंशाल्लाह, based on the audience feedback। तो yes, आपने इधर स्टॉप नहीं करना कि आपने बैक एंड और फ्रंट एंड करना आपको आ गया, मे बी आपने रिएक्ट सीख ली, मे बी आपने एक्सप्रेस सीख ली, Django सीख ली, व्हाटएवर, यू हैव टू गो फर्दर देन दैट, ठीक है? क्योंकि स्किल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मेरी स्किल है एक डेवऑप्स की, खैर बाद में आता है कोलैबोरेशन मैनेजमेंट। के लिए बहुत सारे टूल्स कंपनीज यूज करती हैं, टूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? और दैट इंक्लूड्स जिरा एज वेल है, असाना है, क्लिकअप है। लेकिन वही बात है, ये तो आप अपनी मर्जी से टूल चूज नहीं करते। जैसे आप कंपनी में जाते हो, उस कंपनी आपको बताती है कि भाई हम लोग ये यूज करते हैं, एंड यू नो यू हैव टू फॉलो अलोंग। जैसे कि हमारी कंपनी में, मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो वी विल फर्स्ट यूजिंग जिरा, ठीक है? बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जिरा में इट्स गुड, जिरा इज गुड फॉर कंपनीज व्हिच हैव डेडिकेटेड
पीपल हु आर जस्ट देयर टू मैनेज. हमारे यहाँ कंपनी में क्या आर्किटेक्चर है कि हमारे पास कोई एज मैनेजर नहीं होता कि जिसने सिर्फ मैनेजमेंट करनी है, वो डेवलपर भी होता है. ठीक है, तो जब जो डेवलपर भी होता है ना, जो सॉफ्टवेयर बाय डेवलपर आई मीन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस वो वर्ड्स में मिक्स कर रहा हूँ अभी. तो वो उसके इतना टाइम नहीं होता कि वो डेडिकेटेडली हर किसको ओवरव्यू करे, बार बार ओवरव्यू करे. तो जरा रिक्वायर सम मोर टाइम. हम लोग करंटली व्हिच इज लाइक ऑल द टास्क आर क्रिएटेड इन चैनल्स, एंड उसको फिर डेडिकेटेड टाइम मैनेजमेंट भी होती है, हर चीज होती है, ऑल ट्रैक होता है, सब चीजें ट्रैक होती है. तो ये चीजें एक होती है कि थोड़ा बहुत इसका पता होना कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके, वो पता जरूरी है. उसके अलावा देयर इज गिट की, जैसे मैंने बात की थी, तो गिटहब जहाँ मैं बिटबकेट दिखा देता हूँ क्योंकि वी यूज बिटबकेट. इट्स एन गिटहब की तरह ही है, कोई फर्क, बट ये एंटरप्राइजेस के लिए है. गिटहब इज फॉर नॉर्म. ठीक है, तो वी हैव आवर कंप्लीट रिपोजिटरीज हियर. ठीक है, एज यू कैन सी. ठीक है, और इसी कर रहे होते हैं, पुल रिक्वेस्ट होती हैं, यूज होते हैं, पीआर का कॉन्सेप्ट होता है एक. तो दिस इज वन अनरिव्यूड पीआर, बाकी रिव्यूड पीआरस हैं. ठीक है, तो ऑल भी देखे जा सकता हूँ. तो यू विल फाइंड मच मोर पीआरस लाइक दिस. तो मतलब एक ये टूल्स है जो कि मस्ट हैव है. और एक तो बिटबकेट या गिटहब, एनी जो भी आप अप टू यू किया जाता है. गेट के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना इट्स रियली नेसेसरी. ठीक है, उसके अलावा डेवऑप्स की, जैसे मैंने बात किया, डेवऑप्स के फंडामेंटल्स पता होना इट्स रियली यूजफुल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भले वो डेवऑप्स का बंदा नहीं है. ठीक है, उसके अलावा वी हैव, ठीक है, पाइपलाइंस की मैं बात करूं, लास्ट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कराऊंगा. प्रोजेक्ट ओपन कर, इसमें है व्हाट आर pipelines will cover up CI/CD के स्ट्रक्चर को. CI is continuous integration and CD is continuous development. तो इसमें प्रोसीजर होता है हमारे पास के एनी सॉफ्टवेयर टीम, उनकी एक डेवऑप्स की टीम है जो कि डिप्लॉय करके बैठी है, और डेवलपर्स काम है. तो उनको अपडेट्स के लिए ऑटोमेटिक वो अपडेट सर्वर तक जाए, ये क्या काम होते हैं, सीडी का पार्ट है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. ठीक है, और उसके लिए कोड और सर्वर अपडेट करती है. दिस इज द कंप्लीट लॉग फॉर दैट हैं. और गेस काफी लेट हो गई है, तो वी शुड कंक्लूड द सेशन. हम उस पार्ट पे नहीं मूव, बट दैट इज एनी क्वेश्चन सो फार. चीज नहीं समझ आई हो, कोई चीज रिपीट हो, या मे बी एनी सजेशन एज वेल फॉर नेक्स्ट टाइम. I guess that is all for this workshop. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर कंक्लूड करते हैं. Are we having sessions next? Having more sessions next? अच्छा, Kiran, basically the situation that okay, अगर आप engineering के बारे में बात करती हैं, so we do have actually we do have a lot of other sessions as well going on, courses as well, जो बाकी conduct करा रहे हैं, conduct करा रहे हैं related to security, cyber security. लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हो, so we are planning in the next week we will start the session complete merge stack from start till end. merge stack पहले क्यों start करें, क्योंकि वो थोड़ा समझना, ग्राफ्स करना ज्यादा आसान है. जावास्क्रिप्ट वैसे ही बच्चों को थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, अंडरस्टैंड करने में. तो उसका उसका नेक्स्ट वीक में वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन. विल बी कंडक्टिंग दैट. और वो ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कशॉप होगी, वो होगी वीकेंड्स पे, या मे बी 3 or 4 days a week. दैट शेड्यूल इज टू बी डिसाइडेड राइट नाउ. ठीक, का भी ऑप्शन था, अगर इफ यू हैव नॉट सिलेक्टेड देन डू लेट अस नो, हम आपको ऐड कर देंगे वहां पे. एंड क्या उसमें, लेकिन अभी काफी डिटेल, हर एक स्टेप को डिटेल में करना, वो एक डिफरेंट प्लेस पे चल. ओके, यू सिलेक्टेड ऑल, परफेक्ट. तो हमारे पास 3 कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. एडवांस एक्टिविटी सीरीज व्हिच इज मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी पार्ट, एडवांस सिक्योरिटी started which is more focused on the getting into the cyber security, or then we have development which I discussed. So see you in those sessions then. See all the, yeah, kuch
That's it, I guess. So let's conclude the workshop here, conclude the meet as well.